Good morning, everyone. On behalf of Credence Wealth, I welcome you to today's webinar on mastering the arts of timing, business cycles, and your investment. While most of us are familiar with the concept of business cycle as economic fluctuations that involve expansions and contractions, what often goes unnoticed is the critical period when an expansion begins and or a contraction ends. Numerous micro or macro factors contribute to the highs and lows in the stock market. Many investors also realize that boom period after it has already reached its peak and driven by the fear of missing out, which we know as FOMO, and they invest in the market. When the stock price subsequently starts to fall, they may feel that investing in the stock market isn't for them. This is where the role of a fund manager comes into play. They have access to various data points that can signal the turnaround in the business world, which retail investors may overlook. In today's presentation, Mr. Karthik Mehta will explain how a fund manager takes all these factors into consideration while investing the hard earned money of our valuable investors. With 18 years of experience in the equity markets and research, Mr. Karthik Mehta believes in balancing top down and bottom up approaches while never compromising on risk management, which has consistently generated excellent returns for our investors. Following this presentation, we will have a Q&A session. Now I hand over the mic to Mr. Karthik Mehta. Thank you. Thank you, Ashwi. Thank you very much for a warm welcome to everyone. Everyone, thank you very much. आप लोग ने सुबह सुबह सैटरडे को टाइम निकाला है and I would be very interactive again in a Q&A session. You can throw as many questions as you can. एंड आई होप कि आज का जो प्रेजेंटेशन है वो आपको काफी वैल्यू एडिटिव होगा एंड वी हैव लाइक एवरी क्वार्टर वी ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग टेक समथिंग न्यू इन फ्रंट ऑफ यू एंड ब्रिंग समथिंग न्यू इन फ्रंट ऑफ यू और आप उसको देखो समझो एंड यू नो ब्रेनस्टॉर्म करो थोड़ा क्वेश्चन से तो उसको Q&A में मेरे सामने रिप्रेजेंट करो एंड उसके बाद भी आई हैव नोटिस दैट आफ्टर माय quarterly webinar gets over after a couple of days few people come with the questions about you know few slides, so I'm very happy that people are actually participating into our webinar and they are trying to understand what we are trying to represent to them. So without wasting the time, let me start with the presentation. So this is visible, right, Yashvi? Yes, sir. Okay. So you know आज का जो टॉपिक है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ टाइमिंग एंड बिजनेस साइकिल एंड योर इन्वेस्टमेंट्स. सो यहाँ पे हम लोग क्या आज फोकस करने वाले हैं कि यू नो जैसे यशवी ने एक बैकग्राउंड आपको बताया कि जैसे इकोनॉमी की साइकिल होती है वैसे हर बिजनेस की एक साइकिल होती है. उसमें अगर आपने वो साइकिल में उसके चढ़ते हुए टाइम में एंट्री ले ली तो आपको दो तरह से एडवांटेज होता है. एक तो कि बिफोर एवरीवन एंटर्स योर पार्टिसिपेशन इज ऑलरेडी देयर, तो आपका अर्ली मूवर एडवांटेज होता है. दूसरा कि उसकी अर्निंग पर शेयर और जो अर्निंग की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है वो लो होती है और जब एक्चुअली वो नंबर डिलीवर करना चालू करता है वो बिजनेस तो जो मार्केट का परसेप्शन है जो मार्केट का रिस्पेक्ट है वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए और बढ़ता जाता है. बिकॉज दुनिया जानती है कि जो वो बढ़ता सूरज है उसको हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, यू नो. वैसे ही जो बिजनेस ऊपर जाता है उसको मार्केट ज्यादा रिस्पेक्ट करता है. तो उसका रिस्पेक्ट करने का तरीका मार्केट का ये होता है कि पी मल्टीपल या वैल्यूएशन मल्टीपल्स एक्सपांड होते हैं. सो एक आपकी एंट्री टाइम पे हो जाती है. उसके बाद अगर अर्निंग ग्रोथ आना चालू होता है, पीई का मल्टीपल या जो भी वैल्यूएशन मल्टीपल है वो ऊपर जाना चालू होता है तो नेचुरली आपको डबल एडवांटेज हो जाता है. एक तो अर्निंग ग्रोथ का भी एडवांटेज मिलता है और वैल्यूएशन री रेटिंग का भी एडवांटेज मिलता है. ऑन टॉप ऑफ दैट वो क्या होता है कि साइकिल अगर पूरा आपने कैप्चर किया, कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी बिजनेस की साइकिल आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं ना तो उनको लगता है कि अभी बहुत हो गया, मेरा बहुत पैसा बन गया, या तो फिर डर के मारे कि इससे ज्यादा यू नो मुझे अभी ये वैल्यूएशन पे डर लगता है. लेकिन इट इज अबाउट बिजनेस कि बिजनेस अभी मैच्योर हुआ है कि नहीं हुआ है. तो कई बार वो पूरी जर्नी में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है. तो एक तो टाइम पे एंटर होना, दूसरा उसको पोजीशन को रिटेन करना.
एंड तीसरा, आपको जब भी लगे कि अभी ये साइकिल खत्म होने को आ रहा है, या तो मार्केट ने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्काउंट कर लिया और यहाँ से अभी नंबर्स वो मैच्योर होके डिक्लाइनिंग स्टेज में जाने वाले हैं, उससे उसी टाइम पे एग्जिट ले लेना वो भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि लोग एग्जिट लेने के टाइम पे एक्साइट होते हैं, क्योंकि वो फैग एंड में इतनी गरम गरम बातें होती है मार्केट में वो बिजनेस के लिए कि लोगों को लगता है मैं रह गया, जैसे यशवी ने बताया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड वहां पे बहुत ही, वो तो सबसे डेडली एंट्री पॉइंट है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जहाँ पे एग्जिट होना चाहिए वहां पे एंट्री हो जाती है, जहां पे एंट्री होना चाहिए वहां पे एग्जिट हो जाती है, वो भी मैंने कई बार देखा है। सो एक होता है एंट्री का स्वीटनेस आपको मिलता है, स्वीट टाइमिंग, देन रिटेंशन ऑफ दैट एंटायर जर्नी, एंड देन टाइमली एग्जिट। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान है और हम भी एवरी टाइम सही होते हैं, हम भी गलत होते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू करेक्ट द कोर्स करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, तो वी डू दैट। सो नेट नेट हमारा क्या है ना कि स्ट्राइक रेट ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। सो विद इन दैट बैकड्रॉप लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फर्दर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर बिजनेस की एक साइकिल होती है, एक्सपांशन होता है, फिर पिक आता है, फिर रिसेशन आता है, और आपका एक डिप्रेशन आता है। तो जो भी है वो पूरा साइकिल हम आगे दो रीजन में डिवाइड करते हैं। कोई भी बिजनेस की जो साइकिल होती है ना, दो रीजन से होती है, एक मैक्रो ड्रिवन और एक माइक्रो ड्रिवन। अभी मैक्रो में कौन कौन से फैक्टर साइकिल को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है इन्फ्लेशन। कोई भी इकोनॉमी का अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है। पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, फिजिकल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिसी, इवन सोशियो वेलफेयर पॉलिसी, तो ये सारी वेलफेयर पॉलिसी या जो भी गवर्नमेंट की जो स्टैंड है कि ग्रोथ ओरिएंटेड है या फिर सोशलिस्टिक है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, तो उसका भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा बिजनेस पे आता है। एंड देन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट, रूपी डेप्रिशिएशन एंड सो फोर्थ। तो ये जो है वो मेजर रीजन है इकोनॉमिक फैक्टर। ये इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस साइकिल टर्न अराउंड होती है, उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन मार्केट में अभी तक हुआ है। और आज मैं आपके सामने उसके एग्जांपल्स लेके आ रहा हूं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। दीज आर द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल टर्न अराउंड एंड टर्न डाउन। सो जैसे ये है आपका 2003 से 2008 का एक पीरियड मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें आप देख सकते हो कि 31 मार्च 2003 से मैंने पीरियड लिया है, और 31 जनवरी 2008, उसके बाद लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वो 58 मंथ्स का पीरियड था, जिसमें आपका जब शुरुआत हुआ था 2003 में, तब इंटरेस्ट रेट एकदम बिनाइन थे, एकदम लो थे। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ फास्ट चढ़ना चालू हुआ, सिस्टम वाइड एनपीए एकदम पीक पे था, वो धीरे धीरे एनपीए नंबर नीचे आना चालू हुआ, बैंकिंग सिस्टम में ग्रेजुअल रिकवरी आई, और ये सब हुआ 26/11, आपका जो ट्विन टावर का जो अटैक था, उसके बाद ये सब होना, 2-3 साल की मंदी है, और 2003 से ये साइकिल प्ले होना चालू हुआ। तो आप देखिए कि निफ्टी का रिटर्न, और ये सारे सीएजीआर रिटर्न है, वो भी इंडेक्स लेवल के, ये 40.87% था। लेकिन आप देखते जाओ कि अगर आपने साइकिल सही पकड़ी है, मैक्रो साइकिल, तो जो मैक्रो साइकिल रिलेटेड सेक्टर्स है जिनको ज्यादा बेनिफिट हुआ है बिकॉज ऑफ दैट साइक्लिकल टर्न अराउंड, मेटल है, बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, उसमें आपके जो इंडेक्स का रिटर्न है उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर रिटर्न प्राप्त हुए। तो ये तो एक इंडेक्स लेवल की मैंने बात बताई, यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द साइकिल। और ये सीएजीआर रिटर्न है, तो आप सोचो कि इतने 58 मंथ्स में उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आया होगा। अभी एक एग्जांपल मैं आपके सामने ये शेयर करूंगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी, या नाउ इफ यू सी दिस केयरफुली, ये जो एबीबी का चार्ट है, देखिए यहाँ पे, तो एबीबी ने 30 टाइम्स रिटर्न जनरेट किया 5 साल में, जबकि निफ्टी का रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 2003 टू 2008 आपका 6 टाइम था। तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड अगर आप देखते हो, तो एबीबी का जो ऑर्डर बुक है 2003 से 2008 में, वो 43% सीएजीआर से एवरी ईयर बढ़ा।
रेवेन्यू 38% CAGR से बढ़ा, प्रॉफिट 32% CAGR से बढ़ा। उसके बाद 2008 से 2020 तक यू कैन सी द नंबर्स, पूरा डल पीरियड, एंड स्टॉक प्राइस भी किधर भी नहीं गया। अगेन 2020 से 23 में उसका 13% से ऑर्डर बुक बढ़ा, 50% से प्रॉफिट ग्रोथ आया और स्टॉक वापिस यहां से चला। तो ये अगेन 4 टाइम रिटर्न in 3 years and one versus 1.8 times return in Nifty 50। तो क्लियरली आपका ये जो साइकिल प्ले होता है ना, सेम चीज इज विद सीमेंस, लेट्स से 30 टाइम्स रिटर्न इन 5 years। अभी 30 टाइम्स रिटर्न सोच के भी हमको लगता है कि 5 साल में बन सकते हैं क्या, लेकिन बने थे। और यहाँ पे भी देखो 2.5 टाइम रिटर्न्स। सो सेम जस्ट लाइक एबीबी, यहाँ पे नंबर्स जोरदार आए। उसके बाद 2008 से 20 कितना लंबा डल पीरियड आया, उसके बाद वापिस उसका साइकिल टर्न अराउंड हुआ। सो ये जो साइकिल टर्न अराउंड की जो स्टोरी है ना, वो आपको मैं चार्ट के थ्रू और प्रैक्टिकल नंबर्स और एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि कितना इंटेंसिफाई रिजल्ट इसमें आपको मिल सकता है। अभी दूसरा एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगेन द सेम थिंग, आपका आपका यहाँ पे जो ये चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, कि 9 टाइम्स रिटर्न हुआ 5 साल में। ड्यूरिंग द सेम पीरियड निफ्टी तो आपका 6 टाइम बढ़ा है, और एसबीआई का 10 टाइम्स रिटर्न हुआ, और निफ्टी का रिटर्न 6 टाइम था। ड्यूरिंग द सेम 2003 से 8 की बात करें तो उसका एडवांसेस ग्रोथ जबरदस्त था। उसके एनपीए नंबर जो 4.9% थे, नेट एनपीए नंबर वो 1.5% पे आ गए। और सेम चीज हैपन विद एसबीआई की, जो 4.5% का नेट एनपीए नंबर है 1.8% पे आ गया। सो दिस वाज अ मैसिव वेल्थ क्रिएशन टाइम फॉर cyclical sectors based upon a certain business cycle turnaround based upon macro reasons। तो मैं आपको macro reasons वाले एग्जांपल्स अभी दिखा रहा हूं। सो क्लियरली इतने बड़े बड़े रिटर्न, एबीबी सीमेंस बहुत आउटलाइनर था 30 टाइम्स, बट दिस 10 टाइम और 9 टाइम वर्सेस 6 टाइम इज आल्सो अ बिग डिफरेंट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। नाउ गोइंग टू अनदर स्लाइड। अभी ये 2009 से 14 का पीरियड है जिसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, जीडीपी ग्रोथ रिलेटिवली लो था, ग्लोबल स्लोडाउन था बिकॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और ड्यूरिंग दैट पीरियड एक्चुअली जो प्रीवियस टाइम के हीरो थे, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर या इंफ्रा सेक्टर या मेटल सेक्टर या पीएसयू बैंक, वो सब ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया। निफ्टी वाज पॉजिटिव 17.28% सीएजीआर बिटवीन दिस 60 मंथ्स टाइम पीरियड। और फार्मा जो 28% सीएजीआर से चला, एफएमसीजी भी 28% सीएजीआर से चला। तो यहाँ पे आपके जो साइकिल है वो रिवर्स प्ले हो रही थी, तो आपको रिवर्स साइकिल के स्टॉक और सेक्टर्स पिकअप करने चाहिए, क्योंकि उसका सीधा एडवांटेज ये कुछ सेक्टर्स को मिल रहा था। उस टाइम पे फार्मा में एक पर्टिकुलरली क्या हो रहा था कि बहुत सारी प्रोडक्ट जो पेटेंटेड थी वो ऑफ पेटेंट हो गई। इंडियन जेनेरिक फार्मा का मार्केट शेयर ग्लोबल और डेवलप मार्केट में सिग्निफिकेंटली बढ़ा, एंड उनके मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए, ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत बड़ा आया, यूएस एफडी ऑडिट का भी रिस्क नहीं था, तो मैसिव पैसा बना आपका। इसका एक क्लासिक एग्जांपल आपके सामने है ल्यूपिन फॉर एग्जांपल। तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड ल्यूपिन का रिटर्न 6 टाइम्स बना वर्सेस निफ्टी रिटर्न ऑफ 1.8 टाइम्स। दैट इज अ मैसिव परफॉर्मेंस। सन फार्मा 8.5 टाइम रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न ऑफ 1.8 टाइम्स। अगेन अ साइजेबल आउट परफॉर्मेंस। सो ये मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूं कि व्हाट इज बिजनेस साइकिल। इफ यू पार्टिसिपेट वेल बेस्ड अपॉन मैक्रो रीजंस, तो इसमें अगर आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये साइकिल ऑन दी स्पॉट प्ले होता है, मतलब इट टेक्स टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर बताऊं तो ये वाला जो पीरियड है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा और उसके बाद ये चलता है। यू नो कई लोग बोलते हैं कि साइकिल में आप जल्दी घुस गए तो अंडर परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन दैट्स वेयर द ब्यूटी इज कि अगर अपना कॉल सही गया, सो देर इज अ मैसिव आउट परफॉर्मेंस चांस। एंड वो इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस होता है क्योंकि जनरली आप जब साइकिल आइडेंटिफाई करते हो और आपको लगता है कि मैं गलत भी जाऊंगा, तो आपका वेल्थ इरोजन का चांसेस कम है, बिकॉज यू वुड बी बाइंग और योर एंट्री पॉइंट वुड बी एट अ प्राइस पॉइंट वेयर काफी नेगेटिव डिस्काउंट हो चुका होता है, प्राइस काफी लैंग्वेज हो चुकी होती है, टाइम करेक्शन या वैल्यू करेक्शन इज ऑलरेडी बिहाइंड। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो आउट परफॉर्मेंस नहीं देगा आपको, कहीं ना कहीं वो स्टॉक टाइम बिंग रुलाएगा, लेकिन इवेंचुअली इफ इट इज थीसिस इज करेक्ट, यू विल हैव अ मैसिव वेल्थ क्रिएशन
based upon this thesis. Now the next example is Nestle. Again, this during the same period, 2.8 times return versus Nifty returns of 1.8 times. हमने नीचे में सपोर्टिव उसके नंबर्स भी रखे हैं, आपको आइडिया लगे इसलिए. नाउ एक आता है पीरियड 2021-22 का, जो काफी रिसेंट पीरियड है. ड्यू टू साइजेबल मनी प्रिंटिंग कोविड की वजह से ग्लोबली इंटरेस्ट रेट एकदम टूट गए थे, ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच गए थे. एंड दैट वाज अ मैसिव लिक्विडिटी बूम. एंड स्पेसिफिकली उसका एडवांटेज मिला था मेटल को, आईटी को और बैंक्स को. तो आप देखिए कि निफ्टी का रिटर्न था जैसे 18.88% ड्यूरिंग दैट 12 मंथ टाइम पीरियड, बट आईटी वाज पॉजिटिव 40%, specialty chemical 48%, metal 61%, and auto was just 7% because auto was reeling under a huge pressure of what you call inflation. उसको इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा मार पड़ा था. नाउ 21-22 के बाद आता है हमने एक 23 से अभी तक का पीरियड लिया है, बिकॉज 23 में यू हैड रशिया यूक्रेन वॉर. ग्लोबली अचानक से जो जीरो इंटरेस्ट रेट, बिनाइन इंटरेस्ट रेट, एक्सेसिव लिक्विडिटी का टाइम वो रिवर्स हो गया. ओवरनाइट हमने देखा कि ग्लोबली मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ने चालू हो गए, एंड पी मल्टीपल जो एक्सेसिवली हाई हो गए थे उसका डी रेटिंग चालू हो गया. और उसका सीधा असर ये हुआ कि जो एक्सेसिव हाई पी स्टॉक थे या जिनको ये लो इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज मिला था, उन्होंने नेगेटिव रिटर्न. जैसे आईटी इज सिग्निफिकेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर ड्यूरिंग द सेम पीरियड. मेटल इज आल्सो मैसिवली अंडर परफॉर्मिंग 6.43%, एंड ऑटो इज अ रिवर स्टार और वो 35% पॉजिटिव रिटर्न है. इनफैक्ट हमने भी ये साइकिल बहुत अच्छे से पिकअप किया अपने ऑल वेदर फंड और डाइवर्सिफाइड फंड में, एंड दैट्स हाउ वी कुड सी अ मैसिव alpha creation for our clients because of exiting from the IT very timely and entering into the auto with a significant weights. So ये 18 महीने का ये टाइम पीरियड आपके सामने मैंने दूसरा ये मैक्रो साइकिल का रखा. नाउ अभी माइक्रो रीजंस, मैक्रो रीजन में एक हो गया मैंने इकोनॉमी रिलेटेड रिटर्न बताया, दूसरा है इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स लाइक डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम मिसमैच हो जाता है कि कोई साइजेबल नया सप्लाई कोई बड़ा प्लेयर लेके आता है और प्रोडक्ट के प्राइसेस टूट जाते हैं, या तो फिर अचानक से डिमांड आ जाती है लेकिन सप्लाई उसको कैचअप नहीं कर पाती है, और टाइमिंग आपको लगता है कि 2-3 साल की ये साइकिल बहुत अच्छी प्ले करेगा. दूसरा है कैपेक्स प्रोग्राम एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. अभी जैसे पेंट में हमने देखा कि ग्रासिम इज कमिंग आउट विद अ साइजेबल न्यू कैपेसिटी फॉर अ डेकोरेटिव पेंट्स, और पूरा उसके बाद 2-3 छोटे छोटे प्लेयर जेएसडब्ल्यू, एमआरएफ सबने अपना पेंट में कैपेक्स अनाउंस किया, एंड they are actually they have already launched the product and they are increasing and ramping up the capacity. So एक डिस्टॉर्शन हो रहा है सेक्टर में, तो सेम रिवर्स भी प्ले हो सकता है. देन एंट्री ऑफ न्यू साइजेबल प्लेयर, जो ये इंडस्ट्री में था ही नहीं और उसने आके इंडस्ट्री को पूरा हिला दिया. फॉर एग्जांपल टेलीकॉम, जहां पे जियो ने आके पूरा इक्वेशन चेंज किया. टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट इन द सेक्टर विच इज ड्राइविंग द बिजनेस इन ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑर्बिट, कि वो बिजनेस ऐसा पिकअप हो गया बिकॉज उसने वो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन एडवांस में कर लिया और उसका मार्केट शेयर सिग्निफिकेंटली बढ़ गया. गवर्नमेंट पॉलिसीज वो इंडस्ट्री का टर्न अराउंड करती है. जैसे डिफेंस में गवर्नमेंट ने लोकल प्रोक्योरमेंट का जब भी अनाउंस किया, उसके बाद दे स्टक टू दैट पॉलिसी, एंड द मेक इन इंडिया इज मेड अ वंडर्स फॉर द सर्टेन सेक्टर्स like PLI scheme, for example. It's a miracle for certain sectors. Then global geopolitical stability, उसका भी industry specific बहुत बड़ा impact होता है. तो we will see few examples, and अभी ये पार्ट ए था वो इकोनॉमी रिलेटेड था, पार्ट बी वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है. अल्टीमेटली दोनों पार्ट ए एंड बी आर अ पार्ट ऑफ द मैक्रो रीजंस. सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल मैं आपको होटल्स का बताता हूँ. यहाँ पे कोविड आया, उसके बाद काफी होटल्स बंद हो गए. जो अच्छे होटल्स थे उन्होंने सोचा कि 2 साल कुछ होना नहीं है, तो हमारी काफी रूम्स रिनोवेशन मांग रहे, तो काफी प्रॉपर्टी रिनोवेशन में चली गई. वैक्सीनेशन हुआ, लोग अच्छे होने चालू हो गए, फियर निकल गया, और ऑल ऑफ अ सडन ओपनिंग अप, इकोनॉमी का ओपनिंग अप हुआ, और ऑल ऑफ अ सडन होटल्स की डिमांड आई, लेकिन सप्लाई गायब हो गई थी बिकॉज कई होटल्स बंद हो गए, कई होटल्स रिनोवेशन में चले गए. एंड देन यू हैड अ सीरीज ऑफ ट्रैवलर्स डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, फ्यू इवेंट्स एंड ऑल दिस थिंग. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सेक्टर इतना टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, इट्स सच ए लॉन्ग टाइम पीरियड,
2006 से लेके 2020 का पीरियड है ये. See the underperformance of the sector and now see the miracle. So आपका डिमांड सप्लाई डिसइक्विलिब्रियम हुआ और 4 टाइम पैसा बना 2.5 साल में वर्सेस निफ्टी रिटर्न ऑफ 1.7 टाइम्स. आप ये देखो 2008 से 19 में इन सब के नंबर्स देखो, 2% नेगेटिव सीएजीआर से प्रॉफिट हुआ है एंड 2019 से 23 में 37% पॉजिटिव सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है. This is another example of Chalet Hotel, which has a short trading history, unlike Indian Hotel. But see the 3.5 time returns in 2.5 years. So these are few classic example of the demand supply mismatch and how industry got benefited out of it. ये है favorable government policies with focus on domestic manufacturing. So that changed the earning trajectory for many players. Like PLI scheme आया, और PLI scheme जब आया उसके बाद इनका ये जो है वो तब तक the business was languishing for a good 2 years and then यहाँ पे ये डेट पे PLI scheme का announcement आया and यहाँ से you see the difference. So 5 time returns in 1.5 years after announcement versus just 2 time returns in the Nifty 50. And the numbers are also speaking accordingly. So this is just these are few examples we have tried to pick up to make you understand कि क्या क्या पोटेंशियल बिजनेस साइकिल में अगर राइट टाइम पे आपने पार्टिसिपेट किया तो हो सकता है. these are the examples I was talking about. These are again the industry specific examples driven by macro reasons or government policies. Like for example here the defense names, they've generated a massive outperformance. इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज मैटर करती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी मैटर करता है और इसका ये आपको नतीजा आपके सामने है. Now this is a very classic slide, that sizable player I was referring to, that Jio for example. Jio की एंट्री हुई 2016 में. उसके पहले on your left hand side you can see how many players were there in the telecom sector. भारती एयरटेल, BSNL, MTNL, Idea, रिलायंस कम्युनिकेशन, सिस्टेमा, टाटा डोकोमो, वीडियोकॉन, वोडाफोन, सो एंड सो फोर्थ. और यहाँ पे नाउ वी हैव गॉट अ कंसोलिडेशन. फ्यू पीपल हैव एक्चुअली मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस कंप्लीटली एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 4 एंड उसमें भी BSNL, MTNL नोबडी बाइज. So you are just left with 3 out of that. Vodafone Idea जो together हो गया is actually continuously losing the subscribers. So you are left with only 2 players and अभी कोई चांस नहीं है कि 3 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का कैपेक्स नया करके कोई नया प्लेयर उतना हिम्मत है कि ये सेक्टर में आए. सो दिस इज अ क्लासिक बिजनेस साइकिल टर्न अराउंड और जो साइकिल प्ले भी हुआ है. इनफैक्ट यू हैव सीन द स्टॉक प्राइस आउट परफॉर्मेंस ऑफ भारती एयरटेल इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड आई थिंक this is like a very long cycle we are going to see in the telecom in a positive side in the coming years. अभी आते हैं माइक्रो रीजन पे. तो माइक्रो रीजन में क्या होता है, मैनेजमेंट चेंज हो गया और ऐसा कोई मैनेजमेंट आ गया, जो ऐसा कोई बंदा आ गया कि जिसका टेरिफिक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने अपनी एक स्किल सेट है कि वो बिजनेस को टर्न अराउंड कर सकता है. या तो कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो गया जिससे पूरा बिजनेस चेंज हो रहा है, या प्रोडक्ट कंपनी के पास ऐसी आ गई कि उसकी लाइफ साइकिल जनरली, अगर उसके पास जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल एक्स ईयर्स है और नई प्रोडक्ट ऐसी इनोवेट कर ली कि उसकी लाइफ साइकिल भी लंबी है और नई प्रोडक्ट में उसमें एक नया बिजनेस में एक जान डाल दिया, एक नया मोमेंटम डाल दिया. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक्सपांशन, उससे भी बिजनेस में फर्क पड़ता है, मार्जिन्स में. कोई लीगल इश्यूज है या लीगेसी इश्यूज है, वो सारे खत्म हो रहे हैं और बिजनेस वहां से एक फ्रेश नजरिए से आगे बढ़ रहा है. कोई पुराने बेड डेट से बहुत सारे वो पूरे रिकवर हो रहे हैं, यहाँ से वो बिजनेस को नया मोमेंटम दे रहा है. तो ये सारे स्टॉक स्पेसिफिक माइक्रो रीजन हो गए. इसके लिए ना कोई मैक्रो रीजन चाहिए लाइक इकोनॉमिक साइकिल या इंटरेस्ट रेट साइकिल या इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्न अराउंड, ऐसा कुछ नहीं है. डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पूरा चेंज हो रहा है. उसके कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने. वर्लपूल में आफ्टर द एंट्री ऑफ सुनील डिसोजा, स्टॉक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न दिया 4.5 years में वर्सेस निफ्टी रिटर्न ऑफ 1.4 टाइम्स. जुबिलेंट फूड में जब प्रतीक पोटा जी आए और उन्होंने क्लासिक टर्न अराउंड किया बिजनेस को और 5 टाइम्स रिटर्न इन 5 years एंड उनके दोनों की एग्जिट हो गई. उसके बाद इफ यू सी एक्चुअली द स्टॉक प्राइसेस हैव
languished, and so as the numbers have also underperformed. So, this is a very classic example of how management change can impact a business trajectory. नाउ सीजी पावर जो पहले थापर ग्रुप का था, उसके बाद द मुरुगप्पा ग्रुप ने इसका टेक ओवर किया, एंड दिस इज वेयर द टाइम पीरियड वेयर दे took over the company, and between 2010 to 2020 you see is a sizable underperformance of the business, and then from here on it's like a 10-time return in 3 years versus 1.4 time return. And you see the numbers as well, how the numbers have changed over the period of time. It's a classic case of much more efficient, minority shareholder friendly, a quality promoter coming in and changing the business dynamics over the period of time. So again management change example in front of you. This is a product cycle example. आप देखिए यहाँ पे मारुति का एक एग्जांपल है कि बलेनो और ब्रेजा उन्होंने लॉन्च की, और उसके बाद स्टॉक का रिटर्न 2.5 टाइम्स रिटर्न आया बिटवीन 2016 to 18, एंड निफ्टी का रिटर्न ड्यूरिंग द सेम टाइम 1.5 टाइम्स आया. एंड उनका जो अर्निंग CAGR है वो पूरा ड्रास्टिकली चेंज हुआ. एबिटा CAGR 10 से 14 में 12% CAGR से एबिटा ग्रोथ किया, और 14 से 18 में 29% CAGR से एबिटा ग्रोथ किया. मेजर मार्जिन शिफ्ट आया बिकॉज उनके जो ये प्रोडक्ट है वो टिपिकल वैगनआर या जो भी मास मार्केट प्रोडक्ट्स है उससे ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट थे, उसमें प्राइसिंग उनको अच्छा मिला, डिस्काउंट्स कम देना पड़ा, वेटिंग पीरियड भी था. सो क्लियरली ये दो प्रोडक्ट ने उनका फॉर्च्यून चेंज किया. सेम थिंग विद टाटा मोटर्स. ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स में JLR is a very big pie in their numbers shifting, but domestic business एक अगेन अ क्लासिक स्टोरी है जो दैट वो पहले यहाँ पे उन्होंने नए मॉडल्स लॉन्च किए, लाइक नेक्सॉन EV, अल्ट्रोस, हैरियर, सफारी एंड ऑल दिस थिंग, और 3.5 टाइम्स रिटर्न उनका मिला है इन 3 years वर्सेस निफ्टी रिटर्न ऑफ 1.4 टाइम्स. एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड इफ यू सी द मार्केट शेयर जो उनका जो था वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ. उनके मार्जिन जो लॉस थे उसमें से वो मार्जिन सीधे प्रॉफिट में आ गए. उनका पूरा चेंज नंबर्स में चेंज देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल में. ऑन टॉप ऑफ दैट द JLR इज सिग्निफिकेंटली टर्निंग अराउंड. दे आर रीपेइंग द डेट्स, दे आर जनरेटिंग फ्री कैश फ्लो, ऑल दिस थिंग्स आर एडिशनल ट्रिगर. बट ये एक बिजनेस साइकिल फंड में अगर हम देखते हैं तो माइक्रो लेवल का एग्जांपल, प्रोडक्ट स्पेसिफिक का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया. अभी आते हैं. सो दिस वर द क्लासिक एग्जांपल्स, बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मार्केट इज अल्टीमेटली स्लेव ऑफ अर्निंग्स. तो ऑब्जेक्टिव जो है ये कोई भी बिजनेस साइकिल फंड का वो ये होता है कि आप अर्निंग अप साइकिल में पार्टिसिपेट करो. जो ऑलरेडी वर्स्ट आपका डिस्काउंटेड है या तो फिर पेइंग इज लार्जली इन द प्राइस, एंड आपका यहाँ से परसेप्शन चेंज हो रहा है जो मैंने शुरुआत में बताया, और अल्टीमेटली आपको परसेप्शन मार्केट का भले चेंज नहीं हो, सेम पी भी हो, वैल्यूएशन सेम भी हो, लेकिन अर्निंग ग्रोथ आता है तो आपका स्टॉक प्राइस उसको रिस्पेक्ट करता है. तो वी आर कमिंग आउट एंड वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट कॉल्ड अ बिजनेस साइकिल फंड, जो अभी हम कुछ ना कुछ ये जो स्टाइल है ना ऑल वेदर फंड में इंप्लीमेंट किया है हमने, एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ एज वेल. बट what is the difference between all weather fund and business cycle fund? I will tell you in crux. So number one, ये जो फंड है वो मार्केट कैप एग्नोस्टिक है, मल्टी कैप फंड है. ऑल वेदर इज आल्सो मार्केट कैप एग्नोस्टिक, मल्टी कैप फंड. डाइवर्सिफाइड आल्सो मार्केट कैप एग्नोस्टिक, मल्टी कैप फंड. अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन ऑल वेदर में क्या है कि हम लोग मिनिमम 40% लार्ज कैप में अलोकेशन रखते हैं. यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है. So it can see a larger allocation to mid and small cap because the horizon of investment is very long. दूसरा, stock count minimum 20, maximum 35, same in the case of all weather, वो कोई change नहीं है. तीसरा, सिंगल सेक्टर अलोकेशन कैन बी एज हाई एज 40% विद फोकस ऑन 4 to 6 सेक्टर्स. आज की तारीख में ऑल वेदर में 10 सेक्टर्स का एक्सपोजर है. यहाँ पे मिनिमम 4 सेक्टर्स, मैक्सिमम 6 सेक्टर्स का एक्सपोजर होगा, और जो कोई सेक्टर हमको ऐसा लगता है
कि यहाँ पे मैसिव टर्न अराउंड हो सकता है और आने वाले 3 साल में उसके इक्वेशन बदल सकते हैं, तो उसमें हम मैक्सिमम 40% तक का हम एक्सपोजर ले सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और ऑल वेदर में जनरली हमने हाईएस्ट सेक्टर अलोकेशन किया होगा वो 30-35% का पास्ट में किया होगा, वो भी फॉर फ्यू मंथ्स। सो यहाँ पे दैट इज द डिफरेंट एडवांटेज वी हैव। डिफरेंट एडवांटेज इन द सेंस कि इसका मैंडेट अलग है, इसका थॉट प्रोसेस अलग है। लेकिन दूसरा, ये फंड ऑल वेदर क्या है ना, वो बेंचमार्क एग्नोस्टिक नहीं है। मतलब उसमें मैं एवरी मंथ आपको बेंचमार्क के सामने हमारा क्या परफॉर्मेंस है, नेट ऑफ फीस, वो हम बताते हैं, क्वार्टरली वेबिनार में भी हम बताते हैं। ये प्रोडक्ट में दिखाना पड़ेगा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेंचमार्क का कंपैरिजन, लेकिन मैं आपको एज ए इन्वेस्टर मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं कि इट वुड बी फ्यूटाइल टू कंपेयर दिस फंड विद बेंचमार्क ऑन अ वीकली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस। बिकॉज जो साइकिल का सोच के हमने एक्सपोजर लिया है, वो साइकिल अगर 3-4-6 महीना डिले होता है तो योर फंड में अंडर परफॉर्म। वो साइकिल राइट टाइम पे प्ले होता है तो आपका आउट परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा आउट परफॉर्मेंस होगा तो भी बेंचमार्क से कंपेयर करना गलत है, बिकॉज वो बेंचमार्क में, जैसे मैंने कोई सेक्टर में 30% एलोकेशन डाल दिया, वो बेंचमार्क में उसका एलोकेशन 3%, 5%, 8% या 10% है, तो आप नेचुरली बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाओगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा रिटर्न आ गया बेंचमार्क के सामने। सिमिलरली अगर 3 महीना 6 महीना बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करता है तो भी नहीं सोचना है, बिकॉज ये थीम अलग है, ये थॉट प्रोसेस अलग है, एंड इसके लिए आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये बेंचमार्क एग्नोस्टिक फंड में पार्टिसिपेट करोगे तो एक एडिशनल एडवांटेज ये मिल जाएगा कि एक तो आप बेंचमार्क का कंपैरिजन वाला प्रोडक्ट आपके पास है, जिसमें आप रेगुलरली बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करके वेल्थ क्रिएट करते हो। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको एडिशनल ट्रिगर ये है कि अगर सब कुछ सही गया, हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है कि हम कर ही पाएंगे क्योंकि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपका लॉन्गर टर्म होराइजन में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो दिस इज अ बेंचमार्क एग्नोस्टिक एब्सोल्यूट रिटर्न प्रोडक्ट एंड लो चर्न। इसमें अगर हमने कोई थॉट प्रोसेस से कोई सेक्टर या कोई कंपनी में एक्सपोजर लिया है, so we will not be perturbed or disturbed by a quarter phenomena. We will have to take a bigger picture view. We have to allow the business to perform and mature and then take the exit. So it will be very long term oriented investment approach instead of what you are seeing typically कि हमको ये बेच के ये लेना है, because हमको we are in the game of the alpha generation, so we have to sell something and we have to buy something, and you know A is better than B, so let's sell B and buy A. So that thing will reduce in this fund. यहाँ पे हम क्या प्ले कर रहे हैं, माइग्रेशन फ्रॉम बिजनेस हेडविंड्स, जो बिजनेस में तकलीफ है वहां से, या तो बिजनेस में डिसबिलीफ है वहां से हम बिजनेस टेलविंड्स, जो बिजनेस में जो तकलीफ है वहां से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर जा रहा है, वो तकलीफें दूर हो रही है, नया आशा का किरण जग रहा है, और बिलीफ भी इवेंचुअली इन्वेस्टर्स की आएगी। तो वी वांट टू कैप्चर दैट पाई और थीम। एंड अगेन दिस इज अ मिक्स ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। जो बिजनेस साइकिल हम इकोनॉमिक फैक्टर्स वाला प्ले करेंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स वाला प्ले करेंगे, या तो माइक्रो रीजन, जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट चेंज हो गया, बिजनेस साइकिल बदल गया, या तो फिर प्रोडक्ट कुछ ऐसा इनोवेट हो गया, या तो फिर कंपनीज के कुछ लीगेसी इश्यूज है वो निकल गए। तो ये सारे फैक्टर्स वाले माइक्रो बॉटम अप आइडियाज भी आपको दिखेंगे ओवर एंड अबाउट टॉप डाउन अप्रोच। So on this backdrop, we are going to launch the product. Now the risk factor is that returns are going to be non-linear. जो आपको generally benchmark का ऊपर हमारा जो performance consistently मिलता है, it will be non-linear return, exponentially high, डल पीरियड अगेन हाई, डल पीरियड, ऐसा आपको दिखने को मिल सकता है। सिंगल सेक्टर एक्सपोजर इज हाई, सो दैट इज अ स्लाइट रिस्क फ्रॉम द, बट ये रिस्क क्या है ना, ये नेविगेट हो सकते हैं इफ यू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर a decent period of time, because these are a very short term risk factors in the market, जो कोई भी फंड में होते हैं, लेकिन if you stay invested this can be navigated. So why us? Again, I have a very strong arguments to support our thesis. We are not constrained by any particular style. आपने मुझे इतने साल से देखा है,
हम ना वैल्यू इन्वेस्टर हैं ना हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं। हमको जो समझ में आता है कि यहाँ पे मार्केट ये सेगमेंट को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे ये बिजनेस का अर्निंग ग्रोथ अच्छा आएगा, यहाँ पे ये कंपनी का अर्निंग ग्रोथ अच्छा आ जाएगा, उसमें हम बैठते हैं। चाहे वो ग्रोथ स्टॉक हो या वैल्यू स्टॉक हो, चाहे वो मेटल सेक्टर का स्टॉक हो या वो आईटी सेक्टर का स्टॉक हो या एफएमसीजी का हो या फार्मा का हो। तो हमारा कोई ऐसा, वी आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय द स्टाइल। आपने देखा होगा मार्केट में पर्टिकुलर फंड हाउसेस या इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स की एक स्टाइल होती है, दे डू वेरी वेल ड्यूरिंग देयर टाइप ऑफ मार्केट। जब आता है, जब वैल्यू मार्केट आता है तो वैल्यू फंड्स अच्छे करते हैं, ग्रोथ मार्केट आता है तो ग्रोथ फंड अच्छे करते हैं। वी आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय एनी पर्टिकुलर स्टाइल, नंबर वन। नंबर टू, we always respect risk, and we look at the risk metrics very carefully and we don't chase the return. हमने हमने पूरी मार्केट की तेजी में बहुत सारे सेक्टर्स और थीम्स या बहुत सारे स्टॉक मिस किए जो हमारी फ्रेमवर्क में नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट मुझे काफी इन्वेस्टर्स ने उस टाइम पे क्वेश्चन भी पूछे थे कि आपने अदानी क्यों नहीं लिया है, आपने ये क्यों नहीं लिया है। तो हमारा सिंपल था, हमारे फ्रेमवर्क में मैच नहीं हो रहा है, हम नहीं चेस करेंगे रिटर्न को। डिस्पाइट ऑफ मिसिंग ऑल दिस थिंग, we have generated far superior return over benchmark net of fees, and we have created a consistent wealth for our clients, and it's a more peaceful wealth than a topsy-turvy wealth. Number three, we are very agile, very flexible, nimble footed, and always respect the market. So ऐसा हमारे में ईगो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे में रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं है। हमको समझ में आता है हम गलत है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट इज वेयर वी आर एक्चुअली स्लाइटली अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो ये सोचते हैं कि मैं गलत जा ही नहीं सकता हूँ। एंड दैट्स वेयर, या तो जाते भी है गलत तो लेट रियलाइज होते हैं। सो वी आर वेरी क्लियर कि जहां पे समझा वहां पे सुधारो। सो दैट इज द पॉइंट। और ये आपको मैं कुछ डेटा पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा। ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ चार्ट, एंड ये जो डेटा है ना वो ऐसा है कि how many portfolio weights in our portfolio has outperformed the return, has generated a return higher than benchmark, or it has outperformed the benchmark. So for example, October 21 साल का ये डेटा है, 67% of my portfolio stocks did generate return higher than the benchmark return in the month of October. 87% of my portfolio stocks did generate return higher than the benchmark return for February 23, and same is with the March, 88%, फिर 69%। सो पूरे 12 महीने की एवरेज जो आ रही है आपके सामने वो है 76% की। सो 76% ऑफ माय पोर्टफोलियो वेट्स हैव जनरेटेड रिटर्न बेटर देन द बेंचमार्क रिटर्न। Now that shows our class, that shows that most of our bets are going correct, that shows that it is not a return generated by concentrated bets or concentrated names. It is a broad based quality skill based alpha. And research में right wrong सभी जाते हैं, लेकिन how much you go right, you should be going more right and you should be going less wrong, and you should be more long living with the right and short living with the shorts or wrongs. So ये जो है वो बड़ा सिंपल सा थॉट प्रोसेस हमने अपने एक जर्न में रख दिया है, and that has helped us a lot. एंड ये डेटा आपको बहुत काम आएगा। आप जब भी आपको ये स्लाइड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ कंसिस्टेंटली वी हैव परफॉर्म्ड। नाउ कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, सो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा अल्फा आया है, एंड वी बिलीव इन अ कंसिस्टेंट अल्फा। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 1 साल हो गया, अगले साल आवर एंडेवर इज दैट वी वांट टू जनरेट रिटर्न, सुपीरियर रिटर्न हायर देन बेंचमार्क नेट ऑफ फीस एवरी ईयर। सो सिंस इंसेप्शन, अगर निफ्टी 124 रुपया हुआ है 100 वाला, BSE 500 TRI जो ये साल से हमारा बेंचमार्क बना है वो 131 हुआ है, ऑल वेदर इज 139 एंड डाइवर्सिफाई इज 152, which is slightly riskier product compared to all weather. And so you can see the difference. We have generated a sizable alpha, and this is net of fees, by the way. So कोई भी मतलब it's a clean return, in front of you, that this is where the alpha we have generated since 2021 11 June, the launching date. So we believe in a consistent alpha, number 4. Number 5, we have a well established performance track record in public funds in my past journey as well as the current one across the market cycle. This is for the all weather funds, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month performance in front of you.
So this is as on September 23. So obviously, you see in a 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, last financial year, which was very painful. We took you through the pain what market underwent and how we navigated that. And the current financial year, FY 23-24 YTD, so we are, let's say, 27.6% positive versus 19.39% for the BSE 500 and 13.13% for the Nifty 50. So you can understand the level of outperformance we are doing, net of fees and all. So this is for the all weather. This is for the diversified fund. Again, here the returns are slightly better than all weather, but thought process is more or less same. Here the 1 year returns are 33%. FYTD returns are almost 33% versus 17.5% for the BSE 500 on 1 year basis. FYTD 19.39% for BSE 500, and Nifty obviously is 13%. So significant outperformance again versus Nifty and BSE 500 in this fund. So yeah, so these are the 5 points why you should give more money to us for this new product, and I am 100% sure that you would not regret if you stay invested with us for that product for at least 3 to 5 years. You will have altogether a different diversification in your overall basket. All weather is very classy, consistent, quality product. You have tasted that, you have returns in front of you. Now I would propose that you put you give more money to us in a new product where your experience is also going to be far different thought process point of view, and it will be adding additional features in your portfolio, and it will have additional features for the wealth creation. Now ऑल वेदर फंड जो अभी क्वार्टर खत्म हुआ है, तो रिटर्न्स आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा. सो वी आर डूइंग फार बेटर. वन लास्ट मंथ वाज 3.35. लास्ट क्वार्टर, क्योंकि हम क्वार्टर के बाद मिल रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने हमारे खत्म हुए हैं, एंड हमारा 10.62% का पॉजिटिव रिटर्न है. BSE 500 5.49 है, and Nifty is 2.34. So this quarter has been very, very rewarding for us. ये फाइनेंशियल ईयर भी अभी हाफ ईयर खत्म हुआ है, तो अगेन 19.39% के सामने 27.6%. सेम इज फॉर FYTD बिकॉज वी आर मीटिंग, दिस डेटा इज एज ऑन सितंबर. तो ये फाइनेंशियल ईयर में वी आर सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स. And this is the since inception number. So luckily everything is going right. We are working hard, and your trust is being kept alive. These are the top 10 holdings. You are already the shareholders of the fund, so you would know. Again, no fancy names, nothing extraordinary in terms of going beyond the comfort zone. Well diversified portfolio. So these are the top 10 holdings. These are the sectors. Now you see there are 10 sectors in front of you. Very well diversified portfolio. The large cap is 37%, but actually we consider cash is as good as large cap, so the ratio is much higher. The small cap is 23, mid cap is roughly 25%. Same is with diversified fund. I have already shown this slide to you. A significant outperformance in this quarter as well. And these are the top 10 holdings. Couple of stocks are different compared to all weather fund. And here also, here the cash level is slightly less. But more or less same number of sectors and all, but the portfolio has more number of stocks compared to all weather. As the name indicates, it is more diversified fund where the tail is big, and we captured few interesting momentum names in the tail, and we make frequent profits in that.
ये आपका हमने मल्टीपल सेक्टर्स और मल्टीपल इंडाइसिस के साथ का डेटा दिया है सिंस इंसेप्शन। अगर आपने निफ्टी में पैसा डाला होता तो 125 होता था, बीएसई 500 131, स्मॉल कैप अगेन 131, मिड कैप 148 एंड वी आर एट 139 एंड 152। तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑलमोस्ट 40% लार्ज कैप एंड कपल ऑफ टाइम्स हमारा लार्ज के 50-55% भी गया है, 60-65% भी गया है इन लास्ट 2.5 years और 2.25 साल की जर्नी में। बट मिनिमम 40 भी आपने पकड़ा होता तो भी जो हमारा रिटर्न है वो प्योर स्मॉल कैप इंडेक्स से ज्यादा है, राइट? So that clearly speaks that how qualitative our stocks have been, and despite of taking much lesser risk, you have beaten the risky asset class comfortably. This is what is the uh, summary of these two products in front of you. ये एक ऑल वेदर फंड का एक डेटा है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जब मार्च 23 को हमने ये निकाला था कि निफ्टी ऊपर से 8% गिरी थी, स्मॉल कैप वाज डाउन 25%, आवर फंड वाज जस्ट डाउन 4.84%। सो हमने डाउनसाइड काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया है एंड इनफैक्ट निफ्टी के सामने भी हमारी गिरावट कम रही है। सो दैट स्पीक्स डिस्पाइट ऑफ हैविंग मिड एंड स्मॉल कैप इन द पोर्टफोलियो वी डिड नॉट फॉल एज मच एज इवन द large cap indices. Then comes to the rising market scenario. This is as on 30th September number, where we have moved up by 20, close to 16%, which is still higher than your small cap index, slightly lesser than mid cap index, and much 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 higher than your large cap index. तो गिरने में कम गिरना, चलने में ज्यादा चलना, that's what is our endeavor, and it is only possible because of right actions at the right time. अभी एक आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने दो बंगले रखे हैं, मतलब ड्रीम वर्सेस रियलिटी। कई बार क्या है ना कि हम जो ड्रीम में सोचते हैं ना, बट रियलिटी में वो चीजें होती नहीं है। दोनों चीज अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मुझे तो राइट साइड वाला घर भी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ गार्डन एंड ऑल, बट मैं आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि जो रियल लाइफ में रियलिटी होती है ना, वो ड्रीम से काफी डिफरेंट होती है। हम जो जितना बड़ा सोच के काम करते हैं ना, उतना बड़ा रिजल्ट आता नहीं है, और वो इल्यूजन होता है या फिर एक थॉट प्रोसेस मगज में होता है कि मेरा इतना पैसा इतने साल में बनेगा, मैं अगर इतने कंपाउंडिंग रिटर्न से जनरेट करूंगा तो मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा आपको ब्रेक लगाने आया हूँ आज। मैं आपको थोड़ा रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा खुद का डेटा है ऑल वेदर फंड का, कि अगर आपने लमसम मुझे पेमेंट कर दिया है और आपने कुछ नहीं किया इन बिटवीन, तो आपका 15.42% CAGR से पैसा बना है। एंड अगर आपने मंथली 2 लाख रुपए की SIP की है तो आपका 17.36% से रिटर्न बना है। एंड दिस इज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि ये सारे फैक्टर्स आपके हो गए। फेड रेट, सीरीज ऑफ फेड रेट हाइक, मतलब क्रेजी 5-5.25% रेट हाइक होना इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब मैंने नहीं इतना फास्ट देखा है अपनी जर्नी में। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, मल्टीपल स्टेट इलेक्शंस आया, कुछ में रूलिंग पार्टी का डिफीट भी हुआ, चाइनीज रियल एस्टेट में बहुत बड़ा डिफॉल्ट हुआ, डेट सीलिंग क्राइसिस आ गए यूएस में, लेकिन सब कुछ इग्नोर करके आपने हमको बोला कि नहीं, आप पैसा संभालो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू फॉर योर मैच्योरिटी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस ऑड्स, आपने बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट की। बट डिफरेंस ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये कि इफ यू डू SIP, आपका रिटर्न काफी मैक्सिमाइज और इम्प्रूव होता है। और हम हमेशा आपको एनकरेज करना चाहते हैं कि आप हमारे PMS में भी SIP कंटिन्यू करो और चालू करो, बिकॉज आपने एक बार पैसा दे दिया तो आपका काम नहीं हुआ है खत्म। उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है ना, कि यहाँ पे हमने सिर्फ 17% जो SIP वाला रिटर्न है उसको बेंचमार्क ले लिया कि अगर इतना ही रिटर्न आप कमाते हो हाइपोथेटिकली, सो और इन्फ्लेशन लेवल 7% पकड़ लिया कि हाइपोथेटिकली उतना रहता है, तो क्या परफॉर्मेंस आता है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैसा कैसे ग्रो करता है। तो अभी ये आपके सामने है,
विदाउट एसआईपी अगर आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 17% से आपका पैसा बना है, तो 10 साल के बाद उसकी इन करोड़ में वैल्यू होती है 4.8 करोड़, विच इज अ वेरी गुड नंबर कि एक 4.8 टाइम्स आपका पैसा बना 10 साल में। 20 साल में वही पैसा 23.1 टाइम्स, माने 23 करोड़ की वैल्यू पहुंच गई 20 साल में। आपने मुझे लमसम ही दिया है, आपने एसआईपी बिल्कुल नहीं की है, और 30 साल में वो वैल्यू होती है 111 करोड़ की। इजंट इट अ फिनोमिनल, मतलब इट इज लाइक अ ड्रीम, जो मैंने आपको वो पहले वाला लेफ्ट साइड का बंगलो बताया था विद स्विमिंग पूल, व्हाइट कलर का। अभी रियलिटी है कि 60% इन्फ्लेशन ही मैं पकड़ता हूँ, तो 10 साल के बाद ये जो 4.8 करोड़ है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? 2.44 करोड़। 20 साल के बाद जो 23 करोड़ है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? 6 करोड़। और 30 साल के बाद जो 111 करोड़ आपके हाथ में आने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? 14.6 करोड़। सो ये रियलिटी है कि आज आप जो 6 करोड़ से खरीद सकते हो ना, वो आपको 23 करोड़ में भी सेम वैल्यू मिलेगा 20 साल के बाद। आज आप जो 14 करोड़ से खरीद सकते हो वो चीज आपको 30 साल के बाद 111 करोड़ में मिलेगा। सो नेचुरली आज अगर आप 6 करोड़ से खुश है तो आप बराबर हो, आपने 1 करोड़ दे दिया है हमको, हम आपको, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके उतना अच्छा रिटर्न बना के दे। बट आप रियलिटी में देखोगे तो इन्फ्लेशन इज टेकिंग अवे लॉट ऑफ योर जॉय साइलेंटली। एंड यही चीज अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप उसको दूसरी तरह से देखो, कि आप सिर्फ मुझे जो भी श्रद्धा हो, यहाँ पे मैंने 2 लाख पर मंथ का एसआईपी का नंबर डाला है। यू कैन चेंज नंबर इन योर फेवर एज पर योर मैथमेटिक्स, एज पर योर बजट, एज पर योर रिस्क एपिटाइट। सो यहाँ पे हमने देखा कि 10 साल में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3.4 करोड़, 1 करोड़ अपफ्रंट और 2 लाख पर मंथ, साल का 24 लाख, 10 साल का 2.4 करोड़, तो हो गया टोटल 3.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। फिर 20 साल में वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 5.8 करोड़ आपकी, और 30 साल में इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 8.2 करोड़। तो आपने इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ मुझे देने की जगह पे आपने हमारे को 3.4 करोड़ 10 साल में दिया, 20 साल में 5.8 करोड़ दिया, और 30 साल में 8.2 करोड़ दिया। नाउ वैल्यू आफ्टर 10 इयर्स इज 11.6 करोड़, नॉर्मल वैल्यू विदाउट इन्फ्लेशन। ये 69 करोड़, जो 23 था वो 69 हो गया, और जो 111 था वो 380 हो गया। अभी इन्फ्लेशन का नंबर डाल के देखते हैं वैल्यू कहाँ आती है। 6 करोड़ पे 20 साल की वैल्यू होती है 18 करोड़ पे, और 30 साल की वैल्यू होती है 50 करोड़। नाउ यू सी द डिफरेंस, ये जो 6 था वो ये 6 यहाँ पे आ गया। जो 20 साल वाला जो 6 करोड़ आपके हाथ में जेन्युइनली आने वाला था इन्फ्लेशन एडजस्टेड, वो आपका 10 साल के बाद आपके हाथ में आता है। और जो ये जो 14 है 30 साल के बाद वाला, वो आपको एक्चुअली 18 मिलता है 20 साल के बाद। ओनली डिफरेंस इज दैट यू आर अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर, आप एवरी ईयर कैपिटल बढ़ाते हो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इक्विटी मार्केट से कन्विंस हो, आप जनरली एसआईपी करते हो, तो म्यूचुअल फंड की तरह इधर भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको पैसा डालना चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन इज साइलेंटली टेकिंग अवे ऑल योर एफर्ट, नॉट ऑल योर एफर्ट्स बट पार्ट ऑफ योर एफर्ट्स। सो आपका जो ये जो चीज है वो मिनिस्क्यूल हो जाता है, कंपेयर टू व्हाट इज गिवन टू यू, और थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में एक्सेल शीट में आप डाल के कर देते हो कि भाई 20 साल के बाद मेरा पैसा 1 करोड़ का 23 करोड़ होगा। बॉस, इट इज लाइकली टू बी जस्ट 6 करोड़, एंड इसमें मैंने सिर्फ 7% इन्फ्लेशन लिया है, which is the reported number. The real life inflation number is far higher because our lifestyle cost is, lifestyle related inflation is far different. Yes, education हो गया, healthcare हो गया, vacation हो गया, so and so forth. So this is just to encourage you, all of you, and to educate you, all of you, that why you should start doing SIP, no matter what your portfolio size is. It a 50 lakh, 52 lakh, 1 crore or 50 crore. Just focus on what you want to achieve in your life. So this is for the SIP side. Now what we have to say on the market, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्शन पे हम खड़े हैं। हमने ऊपर में 20,200 या ऐसा लेवल का मार्केट देखा, यहाँ से हम नीचे की ओर आके अभी हम 18,900 के आजू बाजू खड़े हैं। सो उसके पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। सी दिस,
ये जो है ना, ये वाला जो बास्केट है, ये वाला बास्केट है, वो 45% ऑफ द निफ्टी वेट कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये टॉप 28 स्टॉक है निफ्टी के ऊपर से नीचे तक में, और ये टॉप 28 स्टॉक का जो वेटेज है वो 80% है निफ्टी में। उसमें से 45% वेटेज, टोटल का 45%, 100 का 45% आई एम सेइंग, इज अकाउंटेड बाय दीज नेम्स, जो आपको मैंने ये वाला जो ड्रॉ करके बताया, ये वाला। अभी इनका आप अगर वेटेज देखो या फिर उनका उसके सामने रिटर्न्स देखो, स्टॉक प्राइस का, मतलब 30 सितंबर 2021 का मैंने लिया है और 26 अक्टूबर 2023 के लिया है, तो मोर देन 2 इयर्स। यू सी द रिटर्न ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बाजार का रिटर्न पॉजिटिव है, सीएजीआर जो भी होगा 8%, 9% सीएजीआर, और निफ्टी का रिटर्न, ये स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव है। मतलब लिटरली 45% ऑफ द निफ्टी वेट्स हैव अंडर परफॉर्म द मार्केट, एंड दिस इज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि ये सब में अर्निंग ग्रोथ आया है। इसका क्लासिक एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, जिन्होंने 19% सीएजीआर से अपना प्रॉफिट बढ़ाया, लेकिन जो स्टॉक का सीएजीआर है वो सिर्फ 5% है ड्यूरिंग द सेम जर्नी। सो यू नो, ये जो है ना, ये कुछ अलग ही लेवल का मतलब डी रेटिंग हुआ है। मतलब ये मैं 2019 से 23 का डेटा बताया आपको, जो और लंबा है कोटक और एचडीएफसी बैंक का, और आपके स्क्रीन के सामने वो सिर्फ पिछले 2 सवा 2 साल का डेटा है। So you can understand the level of pain which has undergone in the market at the Nifty level. तो निफ्टी में ये सारे स्टॉक ऐसे, जैसे जैसे टेक महिंद्रा है, या इन्फोसिस है, या बजाज फिनसर्व है, या टीसीएस है, या लीवर है, या एचडीएफसी बैंक है, या बजाज फाइनेंस है, या रिलायंस है, आर दे नॉट रिपोर्टिंग अर्निंग ग्रोथ वाई ओ वाई? दे आर रिपोर्टिंग अर्निंग ग्रोथ, देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवरऑल, बट देयर इज अ significant wealth erosion by way of time value एंड अंडर परफॉर्मेंस। और उसके नीचे का जो बास्केट है, ये वाला जो बास्केट है, जिसमें बहुत अच्छा वेल्थ बना है, जिसमें टाटा मोटर्स, मारुति, M&M, आईटीसी, L&T, सन फार्मा, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब नाम आते हैं। सो 45% मैसिव अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेसेस है वो कोई ना कोई तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि अपने पी मल्टीपल डी रेटिंग, या जो टाइम वैल्यू कंसोलिडेशन, या जो भी लैंग्वेज आप बोलो, उसके एकदम सर्टेन लास्ट लेग में है, और यहाँ से कुछ कुछ बिजनेसेस टर्न अराउंड दिखते हैं। सो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतना बड़ा हैवी वेट अंडर परफॉर्मेंस होने के बाद यहाँ से बाजार, जो बाजार में जो बातें होती है ना, कि आप लोग सुनते हो कि निफ्टी 15,000 हो जाएगी, या फिर 16,000 हो जाएगी। सो आई डोंट सब्सक्राइब टू दोज आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ इज स्टिल कमिंग। Large part of the pain in a 45% weight of the nifty is already done, so we don't see a significant downside in nifty per se. Now outside nifty क्या हो सकता है, वो एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे क्या चल रहा है, because that is also very important for you to understand. ये आउटसाइड निफ्टी का डेटा है। नाउ इफ यू सी केयरफुली, ये मैंने लिया है स्मॉल कैप इंडेक्स, जो उसके ऑल टाइम हाई से 5% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स 8.5% नीचे है, बराबर है। लेकिन उसमें जो स्टॉक्स है, जो उनके रिस्पेक्टिव 52 वीक हाई से 10% से ज्यादा कितने नीचे है, तो 79% ऑफ द स्मॉल कैप इंडेक्स ऑडियंस is down more than 10% from their 52 week high. 75% of the mid cap audience is down more than 10% from their 52 week high, with average return of close to 20% negative return. मतलब 75% स्टॉक मिड कैप 100 इंडेक्स के ऐसे हैं जो एवरेज 19% डाउन है फ्रॉम देयर 52 वीक हाई। चलो ये तो देयर 52 वीक बाइक का बात हो गया, लेकिन 12 सितंबर का डेट देता हूं, बिकॉज ये डेट पे दोनों स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स दोनों ऑलमोस्ट टॉप आउट हुए, वहां से उनकी नीचे की जर्नी चालू हुई है, और वो आज 5.5% एंड 8.5% नीचे खड़े हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब फ्रॉम वो पर्टिकुलर डेट, आपका 66% ऑफ द स्मॉल कैप इंडेक्स का ऑडियंस है जो मोर देन 5% डाउन है, विद एवरेज रिटर्न ऑफ -13.48%।
74% मिड कैप इंडेक्स का ऑडियंस है जो 12.5% एवरेज नेगेटिव रिटर्न से नीचे है। सो ये इंडिकेट क्या करता है कि मार्केट में फ्रॉथ है ना, वो काफी हद तक निकल गया है, और ये निकलने का जो प्रोसेस है वो चालू है। अभी भी कुछ कुछ जगह पे फ्रॉथ है, अभी भी वैल्यूएशंस मिड एंड स्मॉल कैप में हाई है, और यही चीज हमने आपको बार बार पास्ट में भी समझाने की कोशिश की थी कि दैट इज व्हाई वी कीप certain level of large cap in the portfolio, and that is why we respect the risk, and that is why we have to be very flexible in terms of our approach, and we should not be carried away. हमने जैन फेब मार्च लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखा क्या मार्केट में वेल्थ इरोजन हुआ, एंड हाउ वी सर्वाइव्ड। Not only we survived, we protected the capital and we grew fast from that level. So ये चीज आपको यहाँ पे मैं आपको नंबर्स में रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। तो फ्रॉम हियर ऑन मैं मार्केट को दो हिस्से में बांटूंगा, एक लार्ज कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में 45% of the nifty weights have already undergone a sizable underperformance, so downside levels are exhausted, or they are approaching to the fatigue level. जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पे इट विल बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, इट विल बी अर्निंग ड्रिवन, इट विल बी मेरिट ओरिएंटेड मार्केट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चलेगा। Across the board participation is missing, it is going to be missed upon. It is only and only going to be the stock pickers market from here on. I don't subscribe, and I don't think that the broader market will have a similar sort of a up move, like every top Dick and Harry was going up in the market in, let's say, previous time, wo wala time chala gaya. Now it is going to be a merit oriented, earning driven up move, and it will be very selective. Slowly it will be captured by the market. So आप देख सकते हो कि जो नीचे से अगर बाजार की रिकवरी भी होती है तो आप खुद देख लो कि आपके पोर्टफोलियो में कितने सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे वो प्रीवियस हाई टच नहीं करेंगे, बट कुछ कुछ जैसे अगर अब की बार एनएससी स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स ने नया हाई भी मारा ना, तो ये जो उसके साथ उसका जो ऑडियंस है या जो कंपोजिशन है वो पूरा का पूरा नया हाई नहीं मारेगा। सो देयर विल बी आउटलाइनर्स इन दिस जर्नी, it will not be smooth across the board, and ये प्रोसेस है ना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स को और क्वालिटी को ही फोकस करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आवर व्यू इज ऑन द मार्केट। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी थिंक, बिकॉज मैं आपको निफ्टी का हर बार एक रेंज देता हूं कि वो रेंज में मार्केट लगता है, एंड मार्केट हैज एक्चुअली रिस्पेक्टेड आवर रेंज whatever we have given so far in last 2.5 years in front of you. और ये रेंज में रिवाइज करूंगा आफ्टर थर्ड क्वार्टर नंबर, दैट इज दिसंबर क्वार्टर नंबर। दिस इज फॉर द फाइनेंशियल, बिकॉज अभी मार्केट FY24 का नंबर डिस्काउंट नहीं करेगा, बिकॉज इट्स ओवर नाउ, ऑलमोस्ट ओवर। FY25 का नंबर ही मार्केट डिस्काउंट करेगा, और 25 के नंबर जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो 1000 रुपीज CPS है, वो बहुत कम है। आई थिंक इट कैन बी एज हाई एज 1025 to 1032 रुपीज EPS। सो इन दैट कंटेक्स लोअर केस 18,000, जो ऊपर में 22,000 जा सकता है। इन दिस सिनारियो अगर 1025 या 1030 का EPS आता है तो वो 18,500-600 पे जाएगा। सो 18,500-600 पे गया तो अभी अपना लेवल क्या है, तकरीबन 18,800-900। सो वी आर क्लोज टू दैट पार्ट, दैट मीन्स 18,500-600 इज अ लेवल वेयर यू स्टार्ट पुटिंग मनी एंड यू रेदर इंक्रीज द अलोकेशन। एंड इन केस कोई रीजन से मार्केट 18,000 तक जाता है, बिकॉज अभी शॉर्ट टर्म में ट्रिगर्स है बाजार में, जैसे December 3 को स्टेट इलेक्शंस का आउटकम आएगा, and market is prepared to see the anti-incumbency getting stronger at the state level election. Past में भी हुआ है कि state level election में anti-incumbency हुआ है, and anti-incumbency in the sense national जो पार्टी है उसके against. So past में भी ऐसा हुआ है कि despite of the defeat of BJP, market has ignored that, because market knows that the general election आता है तब people look at national agenda, they forget the state agenda, and they only look at the national agenda. So market is not that much worried for the state election outcome, but incrementally market will take a cue कि पॉलिटिकली सिनेरियो कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, 3 दिसंबर का जो आउटकम आएगा वो 5 स्टेट का, उसमें राजस्थान एंड MP क्रूशियल है। उसके बाद नेचुरली बड़ा इलेक्शन जो आपका नेशनल इलेक्शन है वो है, तो उसके ड्यूरिंग दैट पीरियड
I am expecting कि lot of political movements will be there, lot of news flows will be there, global as well as domestic, which will have some jittery effect on the market, and markets are not likely to be very smooth. But having said that, हम तो अल्टीमेटली नंबर्स देखते हैं, हम तो अल्टीमेटली अर्निंग्स देखते हैं. मुझे अर्निंग्स में कोई कटौती नहीं दिख रही है. इनफैक्ट मोर और लेस अर्निंग्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लाइन विथ व्हाट वी हैव थॉट ऑफ. There are few sectors where clearly earnings are likely to bottom out and see probability कि वो another quarter or two में turn around हो जाएंगे. There are few sectors which are consistently doing good numbers and they will keep on doing good numbers. So हमारे हिसाब से ऑटो के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छे आते रहेंगे. कैपिटल गुड्स अगेन ऑर्डर इनफ्लो एंड एवरीथिंग इज गुड. नंबर्स ग्रोथ अच्छा आएगा. बैंकिंग आपके सामने नंबर्स है सारे, सबके नंबर अच्छे आए. आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यू नो एचडीएफसी बैंक, सो एंड सो फोर्थ. फार्मा नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आते रहेंगे. सीमेंट क्लियरली वॉल्यूम ग्रोथ है और बहुत डिसेंट नंबर्स आ रहे हैं. आईटी इज गोइंग थ्रू द पेन. नंबर ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ मॉडरेट हो रहा है, तो पी मल्टीपल आपके कट रहे हैं. वो एक प्रोसेस चल रहा है. बट अर्निंग जो 1000 है, 1030 में जो आईटी का कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव नहीं होने वाला है. मतलब वो यहाँ से और बड़े नंबर नहीं कटने वाले हैं कि ऐसा हो जाएगा कि मैंने जो 1000 रुपीज का ईपीएस लिया है वो सीधा 980 या 970 हो जाए. ऐसा चांसेस बिकॉज ऑफ आईटी और कोई सेक्टर की वजह से अभी तो लग नहीं रहा है. हाँ, कुछ ऐसा हो जाए कि ग्लोबली ये जो फिलिस्तीन गाजा वाला जो इश्यू चल रहा है, इजराइल वाला, वो कुछ फैल जाए और उसका स्केल बढ़ जाए और मल्टीपल कंट्रीज उसमें बहुत एक्टिव इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर वो बात अलग है. बट इफ इट इज जस्ट अ टू नेशन फिनोमिना एंड अदर नेशंस आर एक्चुअली just suggesting something but keeping themselves away from the active participation, वैसा वाला जैसा ये रसिया यूक्रेन वाला माहौल बनता है, तो इन दैट केस मार्केट विल गेट हैबिचुएटेड टू हिट. हमने देखा है कि मार्केट एक बार हिट लेता है बट सेम रीजन के लिए दोबारा हिट नहीं लेता है. जैसे कोविड आया तो फर्स्ट वेव में जो हिट आया, सेकंड वेव में फिर वो हिट कम हुआ, थर्ड वेव में मार्केट ने इग्नोर किया. सो कोई भी सेम रीजन से मार्केट दोबारा मूवमेंट में नेगेटिव साइड पे नहीं जाता है. सो it will be seen in that context कि अगर ये वॉर लंबा भी चलता है तो भी फाइन है, बट it should not be active involvement of multiple countries and it should not spread beyond a particular geography. So beyond that and 3rd December outcome, I don't see the number specific कोई risk है, because आपके GST collection number, services PMI, manufacturing PMI, inflation number, आपके high frequency indicators जितने भी है, government spendings, मॉनसून, एग्री प्रोड्यूस आउटपुट, एक्सपोर्ट नंबर्स, मोर और लेस सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है. सो मेरे हिसाब से मार्केट्स आर गिविंग यू एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी in terms of two ways to top up your investments in all weather fund or diversified fund, as well as we will be ready with our product in 5 to 6 days. You can give your fresh amount and put into the different thought process वाला नया फंड, और उसमें भी आप एकदम आपका एंट्री पॉइंट भी अट्रैक्टिव हो जाएगा एंड यू कैन हैव अ गुड एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आपका रिस्क फैक्टर यही है. वो फंड का मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी या फिर शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस भी दिखेगा, बट वो रिवर्स भी प्ले हो सकता है. शॉर्ट टर्म आउट परफॉर्मेंस भी दिखे तो भी खुश नहीं होना है. एंड नन ऑफ द अवर टीम मेंबर शुड बी वेरी excited if there is a significant outperformance of that fund versus benchmark, because we have to keep ourselves corrected every time that this theme is not it's a benchmark agnostic absolute return, a quality business cycle participation product where we should not be rejoicing or enjoying sudden spurts or short term blips. So with that, I just conclude my presentation and keep the floor open for Q&A. थैंक यू कार्तिक भाई, थैंक यू सो मच. काफ़ी इंसाइटफुल सेशन, और जो आपका प्रेजेंटेशन था उसकी जो काफ़ी इम्प्रेसिव सब स्लाइड, और मेन चिराग भाई, I can't hear you. हेलो हेलो
Thank you, Karthik bhai. Yashvi, are you listening? Yes, you are audible. Yes. Okay. Again, Karthik bhai, thank you so much. और सेशन काफी डिटेल एनालिसिस से लास्ट 15 डेज से मुझे मालूम है कि कार्तिक भाई और उनकी टीम, रिसर्च टीम और जो प्रेजेंटेशन टीम पूरी ये डेटा के पीछे थी, और जो हम नया जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उसका भी डिटेल एनालिसिस, और कार्तिक भाई का हर टाइम की तरह एकदम इजी लैंग्वेज में, ये कोई फर्स्ट टाइम भी ये प्रेजेंटेशन एक इक्विटी मार्केट का समझने जाए तो आराम से ये प्रेजेंटेशन समझ सकता है। तो ये एक कार्तिक भाई की एक स्पेशलिटी है कि जो भी उनको कहना है, डेटा एनालिसिस इतने टफ है लेकिन जो अपने पास जो आउटपुट आता है काफी इजी तरीके से। तो थैंक यू सो मच। और जो एसआईपी और इन्फ्लेशन के डेटा जो उन्होंने बताए, रियली कि हम जो सिंपली एसआईपी के डेटा देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि इतने रुपए बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट यदि ज्यादा होती है तो वो डिफरेंट ज्यादा दिखता है, लेकिन इन्फ्लेशन को लेस करने के बाद ही वो रिटर्न एक्चुअल में दिखा जाएगा। तो ये रियलिस्टिक डेटा कार्तिक भाई ने हमें दिखाया, तो थैंक यू सो मच। और सभी इन्वेस्टर को आज मैक्सिमम, आई थिंक सबसे ज्यादा इन्वेस्टर हमारे इतने वेबिनार में आज हाईएस्ट इन्वेस्टर टिल अभी तक पार्टिसिपेट है, तो थैंक यू सो मच। और आप सभी को क्वेश्चन आंसर के लिए आप सब राह देख रहे हो, तो क्वेश्चन आंसर सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो कार्तिक भाई प्लीज क्वेश्चन आंसर हम अभी स्टार्ट करते हैं। यशवी प्लीज। Yeah. So thank you Chirag bhai for word of appreciation. पहला क्वेश्चन है कि what are your expectations for the downside level of Nifty? जो मैंने आपको बताया 18,000 से नीचे नहीं लगता है, हमारे 1,000 रुपीज अर्निंग पर शेयर EPS के हिसाब से, which can be upward revised in the December after December quarter results, which is 3 months away. और अपवर्ड रिवीजन मुझे लगता है कि 1025 से 1030 तक आता है, तो फिर वो आपका जो लेवल है वो 18,500-600 का आ जाता है। सो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर 18,000 भी गिनते हैं हम, तो आज के लेवल से आपका तकरीबन 5% निफ्टी में डाउनसाइड लेवल दिखता है एंड 16% अपसाइड लेवल दिखता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है ये लेवल से। मैं अगर हम 18,900 की जगह पे हम 20,000 पे मिलते थे तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं बैठ रहा था, इवन ऑन FY25 अर्निंग बेसिस। सो मार्केट हैज आल्सो करेक्टेड एंड you are getting an opportunity to capture the market and आप इसको, ये जो मेरे जो लेवल्स बताए उस लेवल को कंसिडर करके हर लोअर लेवल पे थोड़ा थोड़ा टॉप अप करेंगे तो भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। सो दैट इज वन। नंबर 2 क्वेश्चन, विच शेयर वी परचेस इन अ पावर सेक्टर? सॉरी, मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक तो यहाँ पे नहीं बता सकता, बट पावर सेक्टर का व्यू मेरा काफी कंस्ट्रक्टिव है, काफी पॉजिटिव है। वहाँ पे हमने कुछ स्टॉक पोर्टफोलियो में लिए भी है एंड वन ऑफ द स्टॉक इज पार्ट ऑफ द टॉप 10 होल्डिंग एज वेल, जो आपको मैंने दिखाया था। तो हमको लगता है कि ये सेक्टर में आने वाले टाइम में काफी अच्छा अभी भी जो पॉजिटिविटी चल रही है वो चलती रहेगी एंड इट शुड बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स फ्रॉम ईयर ऑन एज वेल। विच सेक्टर इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट इन? सो मेरे हिसाब से आपको इसके लिए ही ये बिजनेस साइकिल फंड हमने प्रपोज किया है, क्योंकि हम इसमें जो 4 से 6 ऐसे सेक्टर है, चुनिंदा सेक्टर, जहां पे हमको लगता है कि अभी साइकिल बिजनेस की टर्न अराउंड होने वाली है 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में या 3 क्वार्टर में, और उसमें एट्रैक्टिव एंट्री लेवल्स हमको दिख रहे हैं और हम उसमें बैठ जाएंगे एक्सपोजर लेके और फिर वो साइकिल राइड करेंगे। तो this fund is ideal answer for your question. Having said that, I don't want to disappoint you because you have devoted time here on screen. So हमको फार्मा, CDMO, API स्पेस बहुत अच्छा लगता है, हमको बैंकिंग कंटिन्यूसली अच्छा लगता है, ऑटो भी, आई लुक एट द नंबर्स रिपोर्टेड बाय द प्लेयर्स, इट इज लुकिंग फिनोमिनल कंसिस्टेंटली।
so banking, auto, pharma, CDMO, API, and to some extent मुझे लगता है कि certain IT stocks have started creating and generating good entry points and good opportunity, और वहाँ पे भी 2-3 साल का horizon है तो बहुत अच्छा रिवर्सल मिल सकता है. So again the same question with sectors about to outperform जो मैंने आपको अभी just answer किया है. एक और क्वेश्चन है, have you practically tested the business cycle fund? If yes, for how long has this test been done? Very frankly, we have not done the practically testing of the business cycle fund, or there is a back tested data in front of us. हमने जो भी आपके सामने जो चार्ट्स रखे थे वो ऐसा अपॉर्चुनिटीज जो हमको बिजनेस साइकिल में पास्ट में लगी थी उसका डेटा निकाल के रखा था. लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि हम हमारे एग्जिस्टिंग फंड में स्मॉल स्केल में ये बिजनेस साइकिल का एक्सपोजर लेते ही जा रहे हैं, तभी हमारा अल्फा बन रहा है, तभी हमारा रिटर्न्स आ रहा है, तभी हम बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहे हैं. अगर हम ऐसे बोल्ड कॉल्स नहीं लेते या हम ऐसे काउंटर साइक्लिकल मूव्स नहीं खेलते तो शायद हमारा उतना रिटर्न नहीं बनता था. तो जैसे क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि हम आईटी में से निकल के बैंकिंग या तो मेजरली ऑटो में गए और ऑटो में हमारा बहुत ज्यादा पैसा बना, या हमने स्टॉक स्पेसिफिक जैसे मिसेस बेक्टर फूड इज पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो, तो जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन माइक्रो लेवल का जो थीम बेस्ड स्टॉक बिजनेस साइकिल टर्न अराउंड है वो हमने खेला. And recently we have bought few mining stocks which did very well. So हम वो स्टॉक एग्जिस्टिंग फंड्स में वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आपके सामने, लेकिन डेडिकेटेडली ये प्रोडक्ट के लिए हमने कोई बैक टेस्टिंग नहीं किया है, टू गिव यू ऑनेस्ट आंसर. But since you have a small scale exposure in front of you which has generated a very superior return, तो large scale पे उसका रिफ्लेक्शन अच्छा ही आएगा ऐसा हमारा मानना है. एक बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है कि मैंने 60% स्मॉल एंड मिड कैप में मंथली एसआईपी किया है, कैन आई कंटिन्यू टू इन्वेस्ट फॉर 10 more years? In fact, you can continue to invest for next 20-30 years. There is no issue with that, and you will have a very good outcome based upon that, so don't worry for that. Impact of El Nino and attrition level in IT sector, उसका आपका कमेंट बताइए. और 2 साल से सेक्टर में एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट भी नहीं मिला है, उसका भी कुछ थॉट प्रोसेस बताइए. सी एल नीनो का जैसे अभी इंडिया का जो मॉनसून है वो अगर एक साल अच्छा नहीं आता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता. इट हैज टू बी अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट. इतना भी खराब मॉनसून नहीं रहा है ये साल, एंड गवर्नमेंट हैज टाइमली आइडेंटिफाइड दीज थिंग्स, एंड जहां जहां पे भी उनको लगता है कि इन्फ्लेशन कोई पर्टिकुलर कमोडिटी शॉर्टेज की वजह से आ रहा है तो वो कोर्स करेक्शन एक्शन तुरंत ले लेते हैं, या तो फिर उनको लगता है कि फार्मर्स को एनकरेज करना है. तो जैसे अभी उन्होंने पेडी एंड व्हीट में significant MSP hike किया है, and that will have a positive rub off effect on the rural India. So I am not very much worried about this year's monsoon impact on the market. Coming to IT sector, attrition rates बढ़ रहे हैं क्योंकि 2 साल से उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है. See, there are increments for the particular segments, लेकिन in general जो क्लासिक कमोडिटी आईटी वर्क करते हैं उनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है. काफी चीजें ऑटोमेशन पे गई है, काफी चीजें मशीन सब्स्टिट्यूशन में गया है. और अगर आप इवॉल्व नहीं होते हो एज ए आईटी सेक्टर एम्प्लॉई तो आपका काम कोई और प्रोडक्टिवली कर लेता है तो आपको फिर निकाला जाएगा, या तो फिर आप खुद समझ जाओगे कि मेरा करियर में ग्रोथ नहीं है, तो उसकी वजह से भी एट्रिशन लेवल आ रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अभी एट्रिशन लेवल तो धीरे धीरे चलो एक बार के लिए रुकेगा, कि जो धीरे धीरे मॉडरेट होगा मेरे हिसाब से, लेकिन एम्प्लॉय एडिशन का जो नंबर है ना वही आपका जो धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज डील पाइपलाइन सबको लग रहा है कि थोड़ा कम होगा. तो एक्चुअली होता भी वैसा ही है कि मैनेजमेंट का विजन है ना वो लास्ट में ही बदलता है.
तो पहले मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक रहती है जनरली, लेकिन जैसे 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 यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, यूएस में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ मॉडरेट होता जा रहा है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ऑन आईटी साइड। तो अभी सारी कॉर्पोरेट्स भी धीरे धीरे अपना टोन चेंज कर रहा है। इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस काटा, सब अपना गाइडेंस धीरे धीरे काट रहे हैं, सबने एम्प्लॉय एडिशन भी कम कर दिया है एक्सेप्ट फ्यू नेम्स। सो आई थिंक दिस इज अ क्लासिक साइन ऑफ बिजनेस बॉटमिंग आउट। एंड आईटी सेक्टर में हमने देखा है कि इनफैक्ट 2008 से 2000, अभी मिंट में न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, 2008 से लेके अभी तक सिर्फ 5 इयर्स ऐसे है जिसमें आईटी के लार्ज कंपनीज जो सेंसेक्स के पार्ट है, उन्होंने सेंसेक्स रिटर्न को बीट नहीं किया है, ओनली फॉर द 5 टाइम्स आउट ऑफ सच ए लॉन्ग पीरियड। सो क्लियरली उसमें भी कंसेक्यूटिव 2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस सिर्फ 2 ही बार हुआ है, उसमें अभी ये लेटेस्ट है। ये दिस इज द सेकंड ईयर वेयर द आईटी बिगीज हैव अंडर परफॉर्म द सेंसेक्स रिटर्न्स। सो क्लियरली यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इतना पेसिमिस्टिक होने का जरूरत नहीं है, बट सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा इमीडिएटली। इट्स अ स्लो साइकिल, ग्राइंडिंग है, बट ग्रेजुअली इट विल बॉटम आउट। नाउ आपका क्वेश्चन था कि अल नीनो का एफएमसीजी में इफेक्ट आएगा या कंज्यूमर ड्यूरेबल में आएगा। ऑलरेडी सी दिस सेक्टर्स आर अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट, देयर इज नो मेजर अर्निंग ग्रोथ, एंड जो उसका हाई पी था वो धीरे धीरे मॉडरेट होके लो पे जा रहा है। जैसे पेंट सेक्टर का पी बहुत हाई था, वो अभी भी 50 का पी है, वैसे 75 से 50 पे आया है। एफएमसीजी में भी कंटिन्यूसली पी डी रेटिंग हो रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में पी डी रेटिंग बॉटम आउट स्टेजेस में है, कुछ कुछ पॉकेट्स में मल्टीपल डी रेट होके फिर स्टॉक वहां से नीचे से चल भी गए। जैसे फॉर एग्जांपल वर्लपूल है जो 1200 जाके अभी 1630-40 का भाव है, या कुछ कुछ सेक्टर्स, कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे जैसे क्रॉम्पटन कंज्यूमर है या तो फिर हेवेल्स है, वहां पे अभी भी वो स्लो पॉइजन वाला टाइम चल रहा है, एंड मार्केट इज वेटिंग फॉर 1 or 2 क्वार्टर, एंड देन मुझे लगता है कि वो रिवर्सल आएगा। सो यहाँ से ये सारे पॉकेट्स में 6 to 8 month पर्सपेक्टिव पेन हो सकता है, लेकिन अगर मेरा थॉट प्रोसेस है तो दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ड्यूरेबल बॉटम, एंड देन विद द अर्निंग साइकिल रिवीजन, क्योंकि बेस भी आपका फेवरेबल हो जाएगा। सो लार्ज पार्ट ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस एंड पेन इज बिहाइंड इन एफएमसीजी एज वेल एज कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। Do you consider technical charts alongside fundamental to make investment decision? नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो सिर्फ फंडामेंटल से लेते हैं, लेकिन एक बार स्टॉक पोर्टफोलियो में आता है तो वो स्टॉक के लिए अगर कोई टेक्निकल चार्ट्स आ जाता है, क्योंकि हमको रिसर्च हमारे ईमेल पे जो सेल साइड होते हैं एनालिस्ट, वो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, वो भी अपनी इनपुट्स देते हैं ओवर एंड अबव फंडामेंटल एनालिस्ट। तो अगर हमारा कोई ओनरशिप वाला स्टॉक है तो उसके ऊपर उनकी कोई कमेंट आ गई तो हम जरूर पढ़ते हैं कि टेक्निकली ये चार्ट के ऊपर ये स्टॉक कैसा लगता है, लेकिन फिर भी जो एक्शन लेना आता है ना वो फंडामेंटल मेरिट्स पे ही लिया जाता है, बिकॉज माय फोर्टे इज फंडामेंटल बट आई रिस्पेक्ट टेक्निकल अ लॉट। तो अगर मुझे समझता है और मैं कन्विंस होता हूं तो मैं थोड़ा बहुत एक्शन ले लेता हूं, लेकिन एंट्री और एग्जिट प्योरली फंडामेंटल पे होती है। बट इन बिटवीन अगर पोजीशन इंक्रीज करनी या ट्रिमिंग करनी है थोड़ी बहुत, तो वो टेक्निकल की हेल्प ली जा सकती है, जो अगर मिलती है, रिलायबल है, मुझे समझ में आता है, तो मैं उसको करता हूँ। सो दिस इज अ वेरी कैंडिड आंसर टू यू। मिनिमम अमाउंट साइज ऑफ द न्यू फंड, परीक साहब आप जितना दोगे उतना मुझे कम पड़ेगा, तो बट मैं इतना बोलूंगा कि जितना आपका रिस्क एपिटाइट है, जितना आपका यू नो ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये वेल्थ पे पहुंचना है और मुझे ये अचीव करना है, अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग फंड से संतुष्ट है, हैप्पी है, आपको लगता है कि हम कैपेबल है, हमारी ये नई थीम आपको दिमाग में क्लिक कर रही है, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, डोंट लुक एट द don't get constrained to yourself by any particular amount, you go ahead with a full fledged, but आपको लगता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, तो you start with some amount and ramp it up, it's your personal choice. What is the situation of all weather fund and diversified fund as on October? I think हमारा, जहां तक मेरा मेमोरी करेक्ट है, ये महीने में मैंने ऑल वेदर का देखा है एंड डाइवर्सिफाइड भी मोर और लेस सेम है। हम कुछ 1% अल्फा पे बैठे हुए हैं,
So when I say alpha, our returns are superior than the market returns, but market itself is down by negative, let's say whatever 3% or 4%, my team will tell me. तो जो भी मार्केट रिटर्न है ना, उससे हम 1% बेटर है एज ऑन probably yesterday. And don't take this as a authenticate number. I am saying the ballpark number जो मुझे अभी याद आ रहा है. But yes, we are sitting on again alpha. फॉलिंग मार्केट में, एज आई शोड टू यू इन द स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, कि हम कम गिरना चाहते हैं, राइजिंग मार्केट में ज्यादा चढ़ना चाहता है, तभी तो आपका अल्फा अक्यूमुलेट होके बड़ा होता है. आप सोचो ना कि 6 महीने में हम ऑलमोस्ट 9-10% अल्फा पे पहुंच गए हैं. So again in this month, despite of the market odds, despite of all the volatility, we have beaten up the benchmark considerably. What is the minimum amount of SIP in PMS? I think you can do, मैं जनरली एनकरेज करता हूँ 2 लाख, ताकि मैं अच्छे से पोर्टफोलियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं. बट आपको 1 लाख करना है, आपको 3 महीने में एक साथ 3 लाख देना है, क्वार्टरली 3 लाख देना है, चॉइस इज योर्स. आप क्वार्टरली SIP भी कर सकते हो अगर आप मंथली नहीं कर सकते हो तो. न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लाइक नाइका, जोमेटो, पेटीएम, व्हाट इज योर व्यू? मैं कोई स्टॉक स्पेसिफिक तो व्यू नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जल्दी समझते नहीं है ये सब बिजनेसेस. एंड दिस इज लाइक हम लोग कैश फ्लो एंड रियल नंबर्स वाले हैं, मतलब वन ऑफ, ये ऑफ, वो ऑफ निकाल के, एक्स ऑफ दिस नंबर निकाल के एडजस्टमेंट वाला मेरे को अभी, बिकॉज ये मैं आपका पैसा मैनेज कर रहा हूँ. मेरा पैसा होता तो मैं फिर भी रिस्क ले लेता, और जब मैं पब्लिक का पैसा मैनेज करता हूँ, आई शुड बी मोर अकाउंटेबल इन टर्म्स ऑफ द एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जेन्युइन प्रॉफिटेबिलिटी, जेन्युइन कैश फ्लोस, जो अभी भी मुझे नहीं दिख रहे हैं. सो that's why we are keeping ourselves away from these new age, few of the new age sectors. Performance of the chemical stocks in last year has been muted due to elevated valuations, correct, and moderation in realization led by slowdown in global market, correct. Do you feel this sector bottoming out in quarter or two? I think so. In a quarter or two, this sector shall start reporting a decent numbers, in the sense जो pain है numbers में वो moderate होगा, but pain चालू रहेगा. And another, so it's a process of 1 year. सो थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स मुझे लगता है, क्योंकि आपका बेस बहुत डेटेरियोरेट हो जाएगा, आपका धीरे धीरे ग्रोथ दिखना चालू होगा, लेकिन नॉट अक्रॉस द बोर्ड केमिकल सेक्टर्स. इट विल बी, बिकॉज केमिकल इज सच अ ब्रॉड थीम, एंड उसमें आपको इतने सारे फैक्टर्स और इतने सारे सेगमेंट्स है. सो इन जनरल कमेंट देना मुश्किल है, लेकिन और इफ यू अप्रिशिएट, हमने बहुत टाइमली ये सेक्टर में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया था, उसके बाद हम बहुत टाइम तक इससे दूर रहे. We have started building position in few names very recently, and that indicates our stance that we are taking chance. Not that हमारा weight बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हमको लगता है कि 1-2 क्वार्टर के बाद अभी मार्केट प्राइस्ड इन सब कुछ कर लेता है, तो हम इसमें जरूर एक्सपोजर बढ़ाएंगे. तो यस, दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जस्ट लाइक IT, where it's in last leg of the the bottoming out cycle, and maybe if not 2 quarters like IT looks like 2 quarters away, this sector might be 3 to 4 quarters away. Your view on Laurus Lab? It's part of my portfolio holding. We like it a lot. It's slightly contra bet. I should not be commenting on the stock specific thing, but since it is part of my holding and you are also the shareholder, so I am just telling you. I can't talk beyond that. We can talk in person if you want. What is the view on sugar sector? I think it's a perfect cyclical sector, and my view is moderate positive. I'm not super excited, equally not negative. View on the private sector banks and private sector NBFCs. I think within the private sector banks, few biggies will keep on underperforming, and the mid-size private, not too big and not too small, but mid-range private sector banks will keep on reporting good numbers.
and within the NBFCs also numbers will keep on coming in a decent way. There will be decent growth, and I don't see any issue with the numbers. How market is going to respect that numbers, I think market is still not fully convinced about the expected earning versus the valuation these companies are sitting upon. तो उसकी वजह से उसमें एक एंट्री पॉइंट पे अट्रैक्टिवनेस आती है, एक पॉइंट पे वापस इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं, तो काफी ट्रेडिंग ओरिएंटेड लगता है फ्रॉम द शेयर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू. नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू सबके नंबर्स अच्छे आएंगे, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या प्राइवेट एनबीएफसी हो. ऑल वेदर डाइवर्सिफाइड एंड न्यू फंड, विल द स्टॉक बी डिफरेंट इन ऑल फंड्स? देखो, डाइवर्सिफाइड में ऑल वेदर से ज्यादा ना स्टॉक है, तो स्टॉक काउंट्स ही ज्यादा है, तो नेचुरली थोड़े स्टॉक्स डिफरेंट है. न्यू फंड में काफी स्टॉक डिफरेंट हो जाएंगे, और स्टॉक से ज्यादा उनका अलोकेशन डिफरेंट हो जाएगा. जैसे चाहे वो फॉर एग्जांपल लॉरस लैब तीनों में होगा, बट अलोकेशन कुड बी डिफरेंट. या फिर आईसीआईसीआई बैंक तीनों में हो सकता है. आई एम जस्ट रेंडमली गिविंग द नेम, सो डोंट गो बाय दैट. चाहे नहीं भी हो, यू कांट होल्ड मी फॉर दिस स्टेटमेंट इन द फ्यूचर. आई एम जस्ट गिविंग यू एक्स स्टॉक, लेट्स से, फॉरगेट अबाउट नेम. तो तीनों में हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में बहुत फर्क पड़ता है, अलोकेशन में बहुत फर्क पड़ता है. तो जो हमारी नए फंड की थीम है उसका अलोकेशन टोटली डिफरेंट होगा. बट नए फंड में बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो ऑल वेदर और डाइवर्सिफाइड में नहीं है, या तो फिर है तो उसका वेटेज और अलोकेशन कम है, क्योंकि उसका मैंडेट अलग है. We should start PMS having micro cap companies with a good future business visibility and good promoter. जरूर चालू करेंगे, लेकिन ये लेवल पे नहीं. सब कुछ पानी पानी होने दो, और तब मैं आपके पास चेक मांगने आऊंगा, और तब आप चेक नहीं दोगे ना, वही टाइम होगा मैं फंड लॉन्च करूंगा. क्योंकि अभी तो लॉन्च करूंगा, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे मेरा मंत्रा और चिराग भाई का मंत्रा क्लियर है, इन्वेस्टर की वेल्थ बनाने के लिए पैसे लेने हैं. जब इतना कुछ होने के बाद मैं ये माइक्रो कैप फंड नहीं लॉन्च करूंगा ये लेवल पे, बिकॉज यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माइक्रो कैप फंड, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल और मिड कैप फंड. दैट्स व्हाई माय कमेंट्स आर लाइक दैट. And so we will try to launch these kind of products eventually, and there are so many things which as a house we can offer to all of you. We don't have a dedicated mid and small cap fund, we don't have dedicated few other themes. Business cycle is again a multi cap, but जहाँ पे आपका बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया. तो दिस इज वन सच प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई अप्रिशिएट that you are suggesting me all these things. Keep coming out with your suggestion, and we will first look at our investors benefit, and then what as a house what we are deriving, and then we will launch the product. तो हमको लगा कि मेरे इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम अभी ये प्रोडक्ट का है, तो हमने ये बिजनेस साइकिल फंड पहले लॉन्च किया है. Results of the business cycle fund is very rewarding from the examples shown. Yes, but how to analyze, prepare for the entry as a process, means a process of timing the market, business cycle, what to track, etc. देखिए, इसमें इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट. इसमें मैंने आपको समरी दिखाया था कि कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं. इंटरेस्ट रेट साइकिल, इन्फ्लेशन साइकिल, आपका जीडीपी ग्रोथ साइकिल एकदम मैक्रो लेवल पे, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, मैनेजमेंट चेंजेस. तो आपको ट्रिगर तो मिलेंगे, बस वो ट्रिगर को आइडेंटिफाई करके आपको ये देखना है कि मार्केट ने कितना इसको डिस्काउंट किया है. मार्केट अभी भी डिसबिलीफ मोड में है. यस, अभी भी स्टॉक प्राइसेस लैंग्विश हो रहे हैं, टाइम करेक्शन हो रहा है, वैल्यू करेक्शन हो रहा है. यस, आपका क्या व्यू है? यहाँ से ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में ये नंबर्स बदलेंगे. आपका व्यू अगर बैठ रहा है तो आपके लिए ये सेक्टर और ये थीम परफेक्ट है. एंड जब ये नंबर बदलेंगे ऊपर की बाजू, तो मार्केट उसको रिवर्स तरह से देखेगा और रिस्पेक्ट बढ़ाएगा और मल्टीपल बढ़ाएगा. सो यही एक स्किल है. और इसमें क्या है ना कि आइडेंटिफिकेशन भी लोग कर लेते कई बार, लेकिन स्टेइंग विद दैट जर्नी इज वेरी वेरी वेरी
challenging and people can't stay invested in a particular name. अभी मिसिस बेक्टर फूड हमने 200, 250, 250 रुपये से लेके बैठे हैं, या जो भी प्राइस है अभी 1000 रुपए के भाव में भी we are selling. We are not saying that we are not selling, but it's a regular profit booking because we want to create certain weights in the portfolio, not beyond that. But मुझे कई इन्वेस्टर आके बोलते हैं कि सर आपका, हम आपके इन्वेस्टर है और हमने भी लिया था, आपने लिया था तो पोर्टफोलियो में, लेकिन हमारा तो 9-2-11 हो गया. So that happens. People move out of their thought process, and that's where the classic thought process helps. The stickiness. You should keep cross-checking whether the thought process with which I wanted to participate and I have participated, he is valid or not. आपको continuously cross-check करना है, आपको cross question करना है. जब तक आपको right answer मिलता रहा, आप participate करते रहो. और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अभी हो गया सब कुछ, हो सकता है कि ये साइकिल ऊपर से नीचे जाए और फिर आपका अंडरस्टैंडिंग आए, तो भी लेट नहीं है, क्योंकि आपकी एंट्री पॉइंट इतनी नीचे की है ना कि आप फिर भी एग्जिट कर सकते हो. तो हमारे साथ हुआ है पास्ट में ये कि हमने कोई टॉप में एग्जिट नहीं किया है, कई सारे स्टॉक हमने टॉप से नीचे आने के बाद एग्जिट किया है, लेकिन उसके बाद भी 1-1 साल, 8-8 महीना, 12-12, 14-14, 18-18 महीना वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है बेंचमार्क को, या तो फिर एब्सोल्यूट वेल्थ डिस्ट्रक्ट होती है, तो नेगेटिव रिटर्न आता है वो पॉइंट से, वो तो अलग बात है. लेकिन वही प्राइस पे स्टॉक अगर 12 महीना भी पड़ा रहा, तो मेरा तो अपॉर्चुनिटी लॉस था ना, तो वो पैसा मैंने कहीं और बना लिया. तो हम वैसे देखते हैं. What is the minimum amount to start the PMS? 50 lakh rupees. स्टॉक स्पेसिफिक में आंसर्स नहीं करूंगा, तो आई एम जस्ट स्कैनिंग द क्वेश्चंस. Which sector should you choose for Diwali Murat? Last time we bought tired sectors. दिवाली टू दिवाली वाला 1 साल का व्यू है ना. I think we should look at pharma CDMO API. That is a sector I would pick up. दिवाली टू दिवाली थोड़ा सा हम अर्ली है, लेकिन it may not be as quick as tire, but yeah, and also we still like the auto OEM two-wheelers, like Hero, Bajaj, और ancillaries. So ये सारे कैश फ्लो मशीन है, गुड डिविडेंड पेइंग है, so मुझे नहीं लगता है कि ये सब में कुछ इश्यू है. तो these are the sectors one can look at, but I would still tell you the risk is there. I hold right to go completely wrong, and you should not be holding me accountable for this. Your investment decision is just yours, and you have to consult your financial advisor if you have, because ये मुझे बोलना पड़ता है ऑन स्क्रीन, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी ऑन स्क्रीन कुछ बोल दिया है. ओके. What are your views on electric vehicles, IoT, defense sectors? भैया ये सारे जो न्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है ना, उसमें स्ट्रक्चरली व्यू अच्छे हैं, लेकिन दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू इवॉल्व. सो और इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज एज अ इन्वेस्टर और एज अ फंड मैनेजर भी तो होनी चाहिए ना, और सामने वैल्यूएशन भी सपोर्टिव होने चाहिए. सो मार्केट में क्या है ना, जो मार्केट में आपके सामने इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी और जो ऑन इन रियलिटी जो स्ट्रीट पे हो रहा है, वो दोनों में बहुत फर्क है. Is it a right time to enter in a new launch in your new fund? 100% it is a right time according to us. And in fact यहाँ से अगर मैंने जो बताया ऐसा 18,000 18,500 जैसा निफ्टी का लेवल आता है, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, डोंट हैव अ फियर. एंड ऑफ कोर्स कोई ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गया जैसे कोविड वाज अ सच अ इवेंट वेयर nobody could anticipate it, and वो हो गया. अभी World War III हो जाता है और
मैंने ना सोचा है ना आपने सोचा हो गया, तो फिर उस लेवल पे बात करेंगे बेस्ड अपॉन द प्रेजेंट कंडीशन. आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, एंड any further 5-7% cut in the Nifty level will be even more attractive. Yeah, so I think more or less we have answered all the questions. I'm just scanning it again that if I missed anything, and if I've missed anything, it's only answer for a particular stock which I would not like to give answer. Thank you very much, dear friends. Yashvi, anything else? No, sir, so far we have covered everything, and we have also kept the chat open. So if anyone would have some last minute questions, so they can. मुझे बस एक ही चीज बोलनी है आप सबको कि ये जो नया प्रोडक्ट है ना उसको ट्राई करो डेफिनेटली. जो हम छोटे स्केल में करते आए वो बड़े स्केल में फंड लेवल पे होगा. एंड हैव सम डिफरेंशिएटेड एक्सपोजर इन योर पोर्टफोलियो. इट्स एन अटेम्प्ट टू जेन्युइन अटेम्प्ट टू गिव यू अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग ओवर एंड अबव व्हाट वी हैव एंड व्हाट यू हैव बीन डूइंग विथ अस. तो मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरी इन्वेस्टर जो मुझे सुन रहा है वो अपना नया कैपिटल अलोकेट करे. एंड एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मंथली या क्वार्टरली एसआईपी हमारे पीएमएस में चालू कर दो, क्योंकि मैंने आपको ड्रीम वर्सेस रियलिटी में बता दिया है कि रियलिटी काफी डिफरेंट होती है. Yeah, so that's all. Thank you very much. Thank you कार्तिक भाई, एंड थैंक यू ऑल आवर इन्वेस्टर. आप सभी का मैं हृदय से आभार चाहता हूं, क्योंकि आप सभी ने हम पे काफी ट्रस्ट रखा है, और हम आपका ट्रस्ट बरकरार रखेंगे. और हम और हमारी टीम आपको रिटर्न तो देने के लिए कंटिन्यूस प्रयत्न करते हैं, और अच्छी सर्विस भी हम आपको देते रहेंगे. और कुछ भी आपका सजेशन हो तो ऑलवेज वेलकम. तो ये आज का सेशन यहाँ पर हम क्लोज करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू कार्तिक भाई. Thank you. Thank